So, how's life after getting married? Beautiful. No complaint. How's yours? क्या कह रही हो? भरी बैठी हो? How was your relationship with your parents? I never spent time with them क्योंकि मैं जब छोटा था हॉस्टल में चले गया था मैं बीइंग ए फादर कि यार मेरे बच्चे भी कुछ अच्छे से करें। तो मुझे लगता है कि फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस। तो वो अलग फील थी जब ग्रासिया को हमने देखा। आई थिंक that was the most beautiful moment of our life. It's something I can't describe in the words. What are the three qualities which you have attained as a person? I think independence, freedom, and pursue my passion How important is sports for children? is very important. I think every kid should pursue. Come out from your comfort zone. Leave the tablet, leave the phone. Go to the ground, play any sport. Every parent should encourage them to go outside. What fathers expect from the wives, what the husbands are expecting from the बस wives? खुश रहे भाई. Wow, what a season it has been on Matehood. We had so many wonderful guests where we spoke about women's health, childcare, parenting, diet, nutrition, child psychology, so many such enriching topics which are so useful in a parenting journey of parents. But today we have a very, very special guest who's somebody who's been a very integral part of my life, who's been there to support me through and through, and who's the main reason behind where I am today. It's my co-founder, my husband, father of my children, Mr. Suresh Raina. But आज बातें cricket की नहीं होंगी. The only thing we'll be talking about is his journey of fatherhood and parenting. So I'm really excited, and join me for this very exciting conversation. Welcome to Matehood. It's so good to finally have you here. After what? 3 cancellations, finally I got a date for the 4th. I was so busy with the matches. Sorry about that. मुझे डेट नहीं मिले. Why? क्योंकि पहले आप कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ, देन यू डिड विद रितेश, देन पलकी शर्मा, देन यू आल्सो डिड विद अडॉप्शन वाला, वो बहुत अच्छा था वो. फिर मेंटल हेल्थ, तो उसमें फिट नहीं बैठ रहा था मैं. तो आज टाइम Nothing मिला like है. that. We were very excited to have this conversation. बट with अच्छा चल रहा है माथेउड. सो प्राउड ऑफ यू. Thank you. Thank you. Thank you for all the support. It means a lot. And all the ideas you keep bouncing off. Not me. Your team is doing fantastic job. So I really thought that I want to have you here today because बहुत सारी बातें होती हैं जो हम घर में करते हैं regularly, but एक perspective, एक point of view as a father, as a husband, as a son, which, altogether how it fits for you. That is something I really want to talk about today. I think all department, as you asked me about father, चाहे बेटा हो, चाहे being a parent, it's not easy. क्योंकि जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, because my sport is bit different, because you're always on the move, whether you play IPL, whether you play for your Air India team, whether you play for your country. कि when we got married 2015, I know you've gone through so much, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन टीम में छुट्टी नहीं ले सकता मैं. छुट्टी लेते ही टीम से बाहर हूँ. वो इजी नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ ए बैलेंसिंग, एंड यू बीन इन मास्टर इन दैट. बच्चों का पूरा एक अलग जब ग्रासे हुई थी, आई थिंक आई एम द फर्स्ट प्लेयर इन एंटायर IPL. आई मिस्ड वन गेम फॉर ग्रासिया जब मैं गुजरात लायंस का कैप्टन था. एंड शी केम इन मोहाली व्हेन आई कंप्लीटेड 4500 रन्स. यू वर आल्सो देयर. तो एक अलग प्राउड होता है. आई थिंक मोर देन सेक्रीफाइस बहुत है, more than a player, more than father. I would say meeting with wife, that's more challenging. बीच में BCCI ने भी अलाउड नहीं किया था वाइफ को, your loved ones. I think कभी कभी चैलेंजिंग होता है, but I think we've been came all the way. Different जो प्लानिंग थी, I think चल रहा है अच्छा. एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है और वी गोना कंप्लीट आवर 10th एनिवर्सरी ऑन 3rd. सो वो भी होगा. अभी 10 साल तो अच्छे से कट गए. Over the period of time, what I have seen कि mothers बहुत vocal हो गई हैं about their feelings, the struggles, the challenges. But एक father का perspective बहुत कम लोगों को पता चलता है, बहुत, because fathers don't really talk much about it. और वही मैं आज आपसे discuss करना चाहती हूँ. But let me take a step back. I want to start from childhood. How were you as a kid? How was childhood? मैं बोर्डिंग स्कूल में था 19 में. वी ग्रू अप उससे टुगेदर. भी पहले. उसके या उससे पहले आई थिंक वी ग्रू अप टुगेदर मुरादनगर में. फिर माय फादर इन लॉ, योर फादर
मेरे टीचर थे ऑनर्स फैक्ट्री मुरादनगर में। क्रिकेट खेलते थे, टेनिस बॉल। घर में अलग प्रेशर था पढ़ाई का, क्योंकि खेलना कम था, पढ़ाई ज़्यादा था वो। फिर 99 में मैं हॉस्टल चले गया था। फिर वो मुरादनगर वाला ताल्लुकात हट गया था मेरा, बिकॉज आई वो मोर फोकस्ड कि क्या करना है लाइफ में। वो थोड़ा टफ था, क्योंकि एक साल कभी गए नहीं थे मुरादनगर से गाजियाबाद, स्ट्रेट आई वेंट टू लखनऊ हॉस्टल। वो एक साल बड़ा टफ था वो। बट एज यू सेड कि वो जो ग्रोइंग डेज था, इट वाज मोर ऑफ ए फन एलिमेंट। you're talking to each other, no phones, no social media, you're spending time with your loved ones, चाहे नाना नानी दादा दादी। एक अलग आशीर्वाद था पेरेंट्स का। और वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट आउटसाइड द डिजिटल वर्ल्ड, जो आज के बच्चों में बहुत चैलेंज है वो। एंड बीइंग ए एथलीट, बीइंग ए प्लेयर, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है बाहर खेलना। एंड एज यू सेड अबाउट द वुमेन्स आर वेरी वोकल, बिकॉज दे बिन डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, raising the kid, doing their housework, at the same time looking after the kids, and most importantly their mental health. So मुझे लगता है कि वो सारा अगर आप बॉक्स टिक करोगे तो एज ए हस्बैंड, एज ए पेरेंट, वो हस्बैंड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वो। तो आई थिंक वी बीन डूइंग दैट इन ए वेरी वेरी प्रोफेशनल मैनर। But as far as I remember, when you were a little kid, you were very jolly, very lively. हर वक्त सिर्फ खेलना था. You were always out on the streets looking for a partner to play cricket with you, and you used to play very good basketball. But as a kid who's so determined about sports, you always wanted to play cricket? क्रिकेट में इसलिए खेलते थे, बड़े भैया खेलते थे, मुकेश भैया, वो ऑनर्स फैक्ट्री में, और बास्केटबॉल भी खेलते थे वो। बट ऐसा नहीं था कि कभी इंडिया के लिए खेलना है, ऐसा कुछ जुनून नहीं था। बस ये था कि बाहर जाके खेलना है। मैंने कंचे भी खेले हैं, लट्टू भी उड़ाए हैं, पतंग भी उड़ाई है। मेरा जो फर्स्ट टाइम आपके साथ जो एक टाइम स्पेंड किया था मुरादनगर में, हम छत पे थे, पतंग उड़ा रहे थे साथ में, और बहुत सारे कड़ी चावल खिलाती थी मम्मी 98 से पहले वो। तो आई थिंक वो खेलना एक अलग पैशन था और जुनून था कि देश के लिए खेलना है। पहले स्टेट के लिए खेलना है, गाजियाबाद के लिए, फिर आई हैव टू प्ले फॉर माई नेशनल टीम, स्टेट टीम के लिए। बट पता नहीं वो फिर वो एक अलग तरीके से एक रोड बनती गई। और मेरे लिए जो था, अनिल भाई जो हमारे नेबर थे, अनिल कौशिक जी, उन्होंने बोला हॉस्टल में जाओ, वो भी ओलंपिक की टीम में थे उधर। तो आई थिंक वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था टू चूज़ टू गो टू हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल लाइफ मुझे पता नहीं था, यू नो आप गॉन थ्रू सो मच विद द रैगिंग एवरीथिंग। बट वहाँ गए, फिर मैं बीच में छोड़ के भी आया था, क्योंकि रैगिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आपके शो के माध्यम से बोलूँगा कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कहीं पर हो, रैगिंग इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो एक टफ था, बट वो यूपी से हैं तो ताकत की। उत्तर प्रदेश एक अलग कर्मभूमि है हमारी वो, और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत आईएएस हैं, आईपीएस हैं। क्रिकेट से अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर निकले हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, सिविल सर्विस में बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ की मिट्टी में ना अलग एक, क्या बोलते हैं उसको, एक अलग जज्बा है, एक अलग जुनून है वो, चाहे खेल में हो, किसी भी सिविल सर्विस में हो। तो वी आर लकी वी बॉर्न इन उत्तर प्रदेश। How was your relationship with your parents? आई नेवर स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि मैं जब छोटा था हॉस्टल में चले गया था मैं। दिवाली पे 10 दिन की छुट्टी, एक दिन ट्रेन में आना, एक दिन ट्रेन में जाना, 8 दिन मानो, 8 दिन में 2 दिन में सारा वो कपड़े धुलवाते थे हॉस्टल वाले, फिर वो धोना, वो 6 5 6 दिन मिलते थे। उसमें भी आई थिंक जो सामान नहीं था हॉस्टल में वो लेके जाते थे। बट रियली इन्जॉयड हॉस्टल टाइम। आई थिंक आई बिकेम मोर टफर, आई बिकेम मोर वाइज। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे खेलने का मौका मिला, जो मेरा पैशन था। और थैंक्स टू माई फैमिली, जिन्होंने मुझे वो परस्यू करने के लिए, कैरियर के लिए वो मुझे फ्रीडम दिया हो, क्योंकि नाउ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो बच्चे मॉम डैड जा रहे हैं किट बैग उठा के बच्चों, किसी को शाहरुख खान की टीम से खेलना है, किसी को धोनी की टीम से खेलना है, किसी को विराट की टीम से खेलना है। तो आई थिंक अभी पेरेंट्स लोग और सपोर्टिव हो गए। आई थिंक एवरी किड डिजर्व टू प्ले ऑन द फील्ड। Who were you more close to, your mother or father? मम्मी तो मारती थी पापा आई थिंक वो टफ थे, क्योंकि ये ऑल्सो वर्क इन आर्मी, उसको उनको पता था कि कैसे टाइम एक अलग स्पेंड करते हैं सारा वो। बट मेरे ब्रदर बड़े क्लोज थे वो, क्योंकि आई वाज एबल टू हैव दैट रिलेशनशिप विद देम टू बी वोकल, क्या गॉन थ्रू सो मच हॉस्टल में वो बातचीत करना, देन योर डैड ऑफ कोर्स। और वो एक बॉन्डिंग हो जाती है वो, क्योंकि यू नॉट दैट क्लोज टू योर मॉम डैड से। उस टाइम पे डर लगता था कि क्या बोलेंगे, कहीं वो अदरवाइज ना ले जाएं, वो हॉस्टल से ना बुला ले वो। बट आई थिंक वो डेस्टिनी था, और मैंने जल्दी समझ लिया था एज में कि मुझे यही मेरा रोड है, यही मेरा जज्बा है, क्योंकि यही करना है मुझे लाइफ में। वो पता चल गया था कम एज में, तो इसलिए मैंने कहा डटे रहो। Do you have any fond memories बचपन की with your father
जो भी which are very close to your heart? आई थिंक टेनिस बॉल टूर्नामेंट था हमारे ऑनेस्ट फैक्ट्री में, किसी ने 51 रुपये का चेक दिया था मुझे, वो अभी भी पापा ने संभाल के रखा हुआ था। जब मुरादनगर में था वो, छोटे छोटे मोमेंटम होते थे, मंसूरपुर जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, मुरादनगर जा रहे हैं, गाज़ियाबाद जा रहे हैं, गुलदर जा रहे हैं, सैंतली जा रहे हैं, सुजानपुर जा रहे हैं टूर्नामेंट खेलने। तो वो वही था खेलने का, और इतनी परमिशन थी नहीं। रानी मैम हमारी क्लास टीचर थी, पापा टीचर थे, चड्डा मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया हो। तो जो चाइल्डहुड था उसमें स्पोर्ट्स का, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था चैलू भैया का, जो हमारे मुरादनगर से हैं। वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई परस्यू करते हो कैरियर। तो उस टाइम पे इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारा जो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स का होता है इन्वायरमेंट, वो नहीं था वो, कि फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते थे। आई एम श्योर कि बिफोर यू गोइंग टू हॉलैंड यू हैव सीन दैट, कि वो जो छोटी छोटी रामलीला देखते थे वो, तो वो चीज़ों में मज़ा आता था। आई थिंक दिस इज समथिंग, मुझे ऐसा लगता है हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशियस है कि हम बचपन की बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड थिंग्स एंड पीपल, आई नो इट ऑल, सो इट मेक्स इट वेरी स्पेशल। लाला के छोले, कैलाश के छोले भटूरे। आई रिमेंबर व्हेन वी गॉट मैरिड, सो उस टाइम पे पापा ने एक डायरी रखा हुआ था जिसमें हर न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी। एवरीवेयर दे स्पोक अबाउट यू। वो एक एक चीज़ उन्होंने काट के पूरा बनाया हुआ था। एंड लेटर ऑन देन आई कस्टमाइज्ड अ होल वॉलपेपर आउट ऑफ इट, मुझे रिमेम्बर दैट बट वाज दैट इज वेरी स्पेशल आई फील। और वो आपने वो किया था वॉल, जब पापा भी आते थे कि एक एक कटिंग वहाँ से लेके, मुझे याद है अंडर 16 में 100, विजय मर्चेंट में, कूच बिहार में, तो पूरा जो वॉल था आई थिंक वो बहुत स्पेशल था वो, क्यों कीपिंग दैट कटिंग फ्रॉम सिंस अंडर 14 डेज वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। और उसको संभाल के आपने रखना, फिर उसको पूरा वॉल बनाना। तो जब बच्चे भी, जब घासें बड़ी हो रही थी तो देखती थी वो, जब मैं छोटा खेलता था वो। फिर एक अभी आपने डायरी कहीं घर पे पड़ी थी वो बड़ा स्पेशल डायरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक एक अंडर 19 इंडिया टूर का लिखता था। आज आउट कैसे हुआ, 2 विकेट लिए, 2 कैच पकड़े, 40 बनाया, 60 बनाया, 70 बनाया। तो हमारे कोच होते थे, वो कह रहे जो भी पूरे दिन की दिनचर्या है उसको राइट डाउन करो, क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ। तो मुझे लगता था राइटिंग योर गोल्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं पता था कि अगला क्या करना है, लेकिन जो हुआ है उसको थोड़ा सा आप लिख सकते हो, तो एक बेटर एनालाइज कर सकते हो अपने गेम के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, कि हॉस्टल में कोई था नहीं वहाँ पर ऐसे बात करने के लिए। You have achieved so much and you've worked so hard and you've reached here today at a place where we all are very proud of you. But if I speak about things that have shaped you over the period of time, how do you think पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो बच्चे का फ्यूचर कैसे शेप अप करता है? इफ यू थिंक ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ योर पेरेंट्स, डज हाउ डिड दैट अफेक्ट यू? आई थिंक मेरा उतना बॉन्डिंग नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 4 साल में वो कभी हॉस्टल नहीं आए वो। मेरे ब्रदर ही आए थे वो। आई थिंक उस टाइम पे मुझे लगता था कि दे कुड हैव कम, बट ग्लैड कि नहीं आए। अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे, नहीं तो हॉस्टल का रहन सहन, वहाँ का खाना, पर शायद वो कल्चरली ही कॉमन नहीं था कि पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट होता छुट्टी था। नहीं मिलती, मॉम वाज हाउसवाइफ, पापा या बट बिहाइंड द छुट्टी नहीं सीन मिलता उनका सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर, नहीं। राइट? बट मेरे लखनऊ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने थे जिनके मदर, जिनके ब्रदर मेरे बिल्कुल क्लोज थे। वो जब कभी सिक हुए, कभी या किसी चीज़ की जरूरत हुई, पैसे की या खाने की, तो वन ऑफ माय फ्रेंड दीपेंद्र पांडे, उनकी जो मम्मी थी, जो उनके चाचा थे ज्ञानेंद्र पांडे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। मुझे याद है कि एक बार बीमार पड़ा था मैं, एंटीबायोटिक नहीं होती थी उस टाइम, पैसे भी 100 100 रुपये मनी ऑर्डर आते थे, फ़ोन होता नहीं था वो, हम लोग चिट्ठी लिखते थे, वो जाती थी, फिर आने में टाइम लगता था वो। बट एक अलग मज़ा था, नॉट टू कंप्लेन अबाउट दैट थिंग, बट मुझे लगता है कि एवरी पेरेंट शुड encourage देयर बच्चे को खेलने के लिए। और जो एक फ़न एलिमेंट है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इतना स्पोकन नहीं है, या क्योंकि कभी कभी बच्चे अंदर रखते हैं, उनका एक्सप्रेशन उतना नहीं है, कि आई थिंक आप एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ में क्या करते हो, चाहे वो मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे ब्रदर हो, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड नाउ। क्योंकि आप बात जितना करोगे उतना आपको ना सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि बड़े लोग आपको एक अच्छी गाइडेंस देते हैं, जो मुझे लगता है मुझे फैमिली से बहुत इंपॉर्टेंट मिली वो। और हमेशा जब हम शादी भी हमारी हुई, उसके बाद 3 अप्रैल को शादी थी, 29 को मैं मैच हारा था वर्ल्ड कप का, सेमीफाइनल का, ऑस्ट्रेलिया में। हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 2 दिन में सब किया, 3 को शादी, 5 को आई हैड टू गो टू IPL। तो वो भी टफ टाइम था आपके लिए, क्योंकि यू बिन वर्किंग सो प्रोफेशनली इन हॉलैंड। मतलब वो चलता है, कभी कभी दोनों तरफ से होता है, बट आई थिंक यू बिन वेरी वेरी
प्रोफेशनली और वर्क सारा अभी माथे उठ अच्छा कर रहे हो आप, हमारा तो चलता रहता है। But I'm just, trying to find different paradigms of childhood and how different relationships can really shape you as a person. So we talked about parents. How about your siblings? How important was the role of your siblings in your life? वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टिल रिमेंबर, मैं पिंकी की शादी में नहीं गया, माई सिस्टर, मैच था उस दिन राजकोट में, देवर ट्रॉफी का, अगर वो मैच नहीं खेलता तो मैं सेलेक्ट नहीं होता। 130 रन बनाए थे मैंने, तो कभी शादी, फिर बंटी भैया की शादी में नहीं गया, बंटी ने मौका नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है वो, बट आई थिंक मुझे लगता है सेक्रीफाइस सब करते हैं वो। और क्रिकेट में जब आप भारत को खेलते हो, भारत को रिप्रेजेंट करते हो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। वो फैमिली बिल्कुल अलग है वो। आई हैव सीन दैट इन MS धोनी, आई हैव सीन दैट इन सचिन तेंदुलकर। जब ये लोग, धोनी भी अपनी बेटी के लिए उसमें नहीं गया था 2015 जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 2014 में जब वहाँ पे थे। सचिन बाजी भी, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, देन ही केम बैक टू शारजा, स्कोर्ड 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली के पिताजी की डेथ हुई, फिर 2 घंटे उसने क्रिमिनेशन किया, देन ही केम बैक टू रिप्रेजेंट दिल्ली टीम। तो सबका एक अलग, क्योंकि खेल से ना, वो हमारे पिताजी चाहते थे खेलें, या फिर एक अलग रहता था वो प्रैक्टिस का, क्योंकि बहुत कंपटीशन है वो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिल बोल रहा है ना उसको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे स्पोर्ट टीम स्पोर्ट है वो। Yeah. कि कोई प्लेयर अगर, एक शादी का जो मैंने बोला सिबलिंग का, पिंकी की शादी में अगर जाता तो वो मैच नहीं खेल पाता, तो मैं और धोनी खेल नहीं पाते। धोनी मेरे अगेंस्ट खेल रहा था वो, तो हम दोनों एक साथ ही 2005 में सेलेक्ट हुए। वो टफ था, बट आई थिंक माई सिस्टर विल बी मोर प्राउड दैन मी नॉट बीइंग इन हर मैरिज। बट मुझे लगता है कि वो डिज़र्व मुझे पता नहीं था, कि मुझे खेल ही दिख रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा खेलना तो है, छोड़ना नहीं है वो। ठीक है, अभी तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है हर सिबलिंग का एक अलग रोल होता है लाइफ में, राइट? एंड एवरीबडी इज सो यूनिक इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, और हर किसी से वी लर्न अ यूनिक थिंग, क्योंकि सबकी अलग ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं. हु encouraged you the most to play आई थिंक sport? एवरी वन, ऑल ऑफ देम, स्पेशली माई मम, बिकॉज शी वर वेरी क्लोज टू मी। मैं उनको 1-2 साल देखा ही नहीं, फिर टूर पे चले गए थे सारा का सारा वो इतना टाइम स्पेंड किया ही नहीं। बचपन में ही बाहर था मैं। वो सिबलिंग्स अगर लेना हो तो बड़े भैया का डिसिप्लिन हो गया, मुकेश भैया का और नरेश भैया का, सारी चीज़ें जो जिस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग करी, केमिकल में प्रॉपर वो सब काम किया। फिर वो एक सिंगिंग वाले उसमें आया, फिर थोड़ा सिंगिंग का भी हम लोग को रुझान है वो। फिर दिनेश भैया ही स्टूडियस, सारा वो पूजा पाठ करना उन्होंने इंकरेज किया कि How was life in the hostel? don't ask me। टफ मतलब डिफ़िकल्ट था वो। You were 13 when you moved to बहुत छोटा था, 12 साल hostel. में गए। मेरठ में ट्रायल हुआ था, 1 लाख बच्चे आए थे। फिर 500 बच्चे लखनऊ में गए थे, उसमें से 15 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। वो 10,000 रुपये, हमारा गवर्नमेंट से अफिलेटेड था वो हॉस्टल, 10,000 रुपये पापा पे कर सकते थे वो। What was तो the hardest bit? आई थिंक स्लीपिंग अलोन, डूइंग ऑल द वर्क जो घर में मम्मी करती हैं, पापा खाना खाना बहुत अलग था वो 20 लड़के कॉरिडोर में सोते थे, वो कुछ अलग लोग थे, कुछ अलग था, एक अलग तरीके का माहौल था। But do you think hostel नहीं गए होते तो आज यहाँ नहीं के? खेल पाता मैं हॉस्टल में, टफ बन गया मैं वो। जो ऋतिक रोशन आया था ना लक्ष्य टू मूवी में वापस तो वैसा था वो, कि उसमें नहीं जाता तो मैं अपने आप को नहीं जान पाता वो। इसलिए लखनऊ मेरे दिल से बहुत क्लोज है वो। वहाँ बड़ा एक प्यार मिला, लोग अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, वहाँ का मेहमान नवाजी बहुत अच्छा है, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा। तो मुझे जो वहाँ टाइम जो मैंने स्पेंड किया ना, वहाँ लोगों ने बड़ी दुआएं दी हैं। फेयर इंडिया का स्कॉलरशिप मिलना, 10,000 रुपये मुझे 99 में मिलना, पापा से भी ज़्यादा तनख्वाह थी मेरी स्कॉलरशिप में वो। देन आई हैव टू रिटर्न दैट मनी टू होम। फिर टाइमशील्ड ट्रॉफी खेले वहाँ, मैंने 250 बनाया, सन ग्रेस, मफतलाल के गेंद या कस्टम गेंद। वहाँ अतुल रानाडे, सचिन पाजी के दोस्त थे। फिर पाजी को मैंने CCI में पहली बार देखा, BKC में देखा, फिर पाजी मिले वो। सचिन तेंदुलकर को दुनिया मतलब क्रेज़ था, जब आउट होते थे तो TV ऑफ कर देते सारे लोग। मैंने घर में खुद देखा है वो। उनको देखना तो उनसे बात करना 10 सेकंड 20 सेकंड, तो ये था कि जब ये खेल सकते थे मैं भी खेल सकता हूँ। तो मेरा ऐसे हो गया था माइंडसेट कि नहीं यार, ही सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, एंड एवरी वन कॉल्स हिम ए गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो अलग लाइफ था वो। मैंने कहा पाजी जैसा बनना है, वो अच्छा इंसान बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, और ऑफ कोर्स अच्छा हस्बैंड बनना है। वो तो अभी उसके बारे में बात करेंगे. But what I hear you saying कि you were so determined अपने गोल की तरफ कि hardships भी फील नहीं हुई, नहीं?
नहीं वो था आई थिंक दैट्स वाई वी गॉट अलोंग रियली वेल बिकॉज यू बीन डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पापा और दोनों भाई जो हमारे हैं और यू आर द यंगेस्ट वन फैमिली में और आपको बाहर भेजना यू कैन थिंक अबाउट दैट जो आप मुझसे पूछ रहे हो कितना टफ होगा मॉम डैड के लिए सेंडिंग ए डॉटर टू बैंगलोर डूइंग इंजीनियरिंग देन यू गोइंग टू हॉलैंड आप वो बैंगलोर में भी ज्वाइन कर सकते हैं बट यू चोज कि नहीं लेट मी गो आउटसाइड वहाँ पर अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो यू मस्ट बी हैंडलिंग लॉट ऑफ जोन जहाँ पर बहुत बड़े लोग हैं बट आई थिंक इट वॉज डेस्टिनी टू come back to our Yeah. country and you've grown as a great person over the great mother you are I must say that पर बच्चों में जो एक बॉन्डिंग है हमारी वो बहुत अलग है वो एंड यू हैंडलिंग ग्रासेरेना फाउंडेशन यू बीन हैंडलिंग मातेहुड देन यू हैव ए ओन ऑर्गेनिक ब्रांड जिसमें एक अलग तरीके का एक फील है इट्स ए प्रीमियम ब्रांड एवरीवन इज़ डूइंग सो वेल इन योर टीम तो मुझे लगता है कि एक अलग बीइंग ए मदर बीइंग ए एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कर रहे हो इट्स नॉट इजी Thank you बहुत इंपॉर्टेंट for है you being the biggest support there. If I talk about your boarding days, what are the 3 qualities जो which you have attained as a person boarding school में होने की वजह से? आई थिंक इंडिपेंडेंसी फ्रीडम एंड परस्यू माई पैशन वॉट आई लव अबाउट माई स्पोर्ट क्रिकेट नहीं था वहाँ पर उसके साथ क्रिकेट था उसके साथ टेनिस सॉकर वॉलीबॉल फिर हमारा एथलेटिक्स था वहाँ पर और वहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट ग्राउंड जहाँ हम ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी स्टेडियम तो वो 3 चीज़ में लगा इंडिपेंडेंसी उसके बाद फ्रीडम और परस्यू माई ड्रीम पर उसके जो ऑब्स्टेकल था ना फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो क्योंकि किसी भी शुरुआत में डिफ़िकल्टीज तो आएंगे वो क्यों प्लेट में नहीं मिलेगा कुछ भी As a kid, when you moved to the boarding school, you were definitely missing home. You missed family. घर का खाना But उसको cope कैसे किया? 1 साल था टफ जब मैं वापस भी आया वो मेरे लिए बड़ा सीख थी एक जब छोड़ के गया रैगिंग मेरे 1-2 फ्रेंड्स से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा अलग था वो 99 वॉज द टफेस्ट जब मैं कुछ खेला भी नहीं था वो मैंने कहा इनके बीच कैसे रहेंगे तो सीधा ही उठते ही कंटाप और मेरी जो भाषा थी गाजियाबाद तू क्या कर रहा है हम थोड़े लठ मार है ना गाजियाबाद मेरठ में थोड़ी अलग भाषा है वहाँ पर बात करते हैं अम्मा आइए अम्मा जाइए अम्मा खाइए आइए थोड़ा बातचीत करते तो मैं ये लहजा नहीं था मेरा वो तो फिर वहाँ ऐसे रैगिंग तू भी तो कर ले बैटिंग हम ऐसे तू आप नहीं करते थे वो तो धक से चाटा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं फिर वो गुस्सा जब मैं वापस आया गुस्सा निकला मेरे हार्ड वर्क में वो गुस्सा मेरे अंदर भरा था खेलने का जोश था लेकिन कभी वो नॉट टू अब्यूज़ एनी वन नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनी वन वो एक अलग रिस्पेक्ट था बट वो खेल में अगर वो मार रहे हैं तो 10 राउंड लगा लिया अगर वो 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता था थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट मुझे लगा वो मेरा गुस्सा ना मेरे एक बॉडी पे निकला मेरे माइंड को एक अलग एक एस्ट्यूड मुझे बनाया एक समझदार बच्चा और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस हो गया 1 साल था वो I know boarding school has been a very integral part of your life. But would you consider sending your own children to boarding school? बेटर होगा तो डेफिनेटली क्योंकि अभी जो एक प्रॉपर अभी आप देखोगे जो डिजिटल वर्ल्ड है आई वुड प्रेफर दे शुड गो टू स्टडी बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पर थोड़ा इन्वायरमेंट एक प्रोफेशनल हो क्योंकि हमारा वाला थोड़ा स्पोर्ट का अलग था वो अगर मुझे वहाँ से कोई बोले कि बच्चों को एडमिशन हम ऐसे ही करा देंगे तो मैं नहीं भेजूँगा उस टाइम पे होते तो आई विश कि मैं रहता तो भेज सकते थे वो How important is sports for children? It's very important. I think every kid should pursue. स्कूल में स्टार्ट हो गया अभी आप देखोगे कहीं पर पहले हम पीटी करते थे या योगा करते थे क्योंकि मेरे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट था मेडिटेशन योगा जो मेरा हमेशा जो मेरा लॉन्ग कैरियर रहा है योगा की वजह से मेडिटेशन की वजह से हम पहले करते थे क्योंकि मेडिटेशन ने एक प्रेशर को हैंडल करना सिखाया मेडिटेशन ने फोकस करना सिखाया और योगा ने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखा क्योंकि जब इंजरी हुई थी मैंने बड़ा बॉडी को बड़ा ध्यान रखा वो क्योंकि इंजरी बहुत कम हुई है मुझे 2 ACL कंस्ट्रक्शन हुए हैं बट उसका जो प्रोलॉन्ग हुआ मेरा कैरियर वो मेडिटेशन ने किया हो और एज यू सेड अबाउट एवरी किड प्ले स्पोर्ट और अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप विद द अकेडमी वी आल्सो डूइंग लॉट ऑफ प्लानिंग टू डू देयर मेंटल हेल्थ लॉट ऑफ किड्स आर इनटू जोन जहाँ पर वो ओपन अप नहीं होते कोचेस के साथ एकदम से आना बंद कर देंगे प्रैक्टिस पे
तो मुझे लगता है कि बच्चों को बोलना ना पड़े, सुबह उठे मुझे प्रैक्टिस पे जाना है वो, और वो माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे वी बिन सेंडिंग आवर किड्स टू सॉकर, gracias, शी इज़ लर्निंग हिंदी, शी इज़ लर्निंग स्पेनिश, शी इज़ ऑल्सो जॉइनिंग पियानो क्लासेस। तो एवरी किड हैज़ ए डिफरेंट टैलेंट, और वही टैलेंट उसको एक अलग, बच्चों से अलग बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए स्पोर्ट खेलना। So, how's life after getting married? ब्यूटिफुल, नो कंप्लेन। हाउस योर्स? क्या कह रही, बड़ी बैठी हो? You really want me to speak up? Very different. That's the What do you mean word I by would different? say. Beautifully different. Do I have a choice to say something else? You can say it. It's your show. Today's your interview. I'm the host. So, अच्छा. but yeah, how is it different? I mean, how is it? Wonderful, I must say. I think we both travel so much. Mm-hmm. We've been living independently. सारे अपना decision. You've been doing a lot of things what you like the most. और the day I got retired, उसके बाद बहुत सारी globally league आ रही हैं. I'm also able to look after my game. Of course, playing with the same teammates, getting paid, and उसमें बच्चे आ रहे हैं देखने, क्योंकि मैं, बेटी तो आई है काफ़ी मैचेस में, मेरा बेटा भी अभी आ रहा है। इंग्लैंड में हम लोग खेले, वहाँ जीते, सूरत में वो आया, वहाँ फाइनल में खेले। मुझे लगता है कि रियो को उतना पता चल गया है अभी, पहले तो छोटा था वो। ग्रासिया आईपीएल का हिस्सा थी। शी केम इन 2018, जब हमारी टीम को बोला गया था ये डेड आर्मी है, पिताजी वाली आर्मी। तो वहाँ पे जीते। हिनाया था ये, बजवा की बेटी, माई भाई की बेटी, फैफ की बेटी, इमरान ताहिर का बेटा। आप थे उधर बच्चों के साथ, गीता भाभी, साक्षी थी उधर। तो बड़ा अलग इन्जॉय किया वो। आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा डिबेट भी चल रहा है, इंडियन टीम्स की फैमिली अलाउड नहीं है। आई थिंक फैमिली को आना बहुत ज़रूरी है। तो आपके मातेयुट के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट है, फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम 10 घंटे की प्रैक्टिस करके आते हैं, मैच खेल के आते हैं, इफ़ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद यू, इफ़ आई एम होल्डिंग माई सन और डॉटर, तो आई थिंक दैट्स रिलैक्स्ड मी टू प्रिपेयर बेटर नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। How is it being a father? इट्स समथिंग आई कांट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। फर्स्ट, पहले जो आपने पूछा था कि वो फादर के साथ कैसी बॉन्डिंग है, जो मैंने मिस किया, जो इतना नहीं हो पाया जब पापा का, जब लॉकडाउन में थे, नाउ ही पास्ट अवे। तो हाउ इम्पोर्टेंट एज ए फादर टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, क्योंकि सेम बोट में होना ज़रूरी है। क्योंकि रियो बड़ा हो रहा है, ग्रासे बड़ी हो रही है, उनका स्कूल है, हम सुबह उठते हैं, उनको रेडी करते हैं। वो ट्रैवल से बहुत सीखते हैं बच्चे को। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फादर के रिलेशन बच्चों के साथ कैसे फ्रेंडली रखते हो। एज यू आस्क्ड ब्रिलियंटली कि बच्चों को स्पोर्ट्स कल्चर कैसे करते हो। क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ, पिक्चर कोई खींचता है, तो उनको लगता है पापा की पिक्चर क्यों ले रहे हो। फिर ये कहता मुझे सुरेश रैना बनना है। बेटी भी जब कहीं बाहर जाती है, तो आई थिंक एक अलग एक्स्ट्रा मोटिवेट होता है प्लेयर बीइंग ए फादर, कि यार मेरे बच्चे भी कुछ अच्छा से करें, वो भी स्पोर्ट खेले, चाहे सॉकर, क्रिकेट या कोई भी ऐसा स्पोर्ट जहाँ पर वो इन्जॉय करे वो। तो मुझे लगता है कि फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनको बच्चों का एक माइंड डेवलप करने के लिए, उनका हेल्थ डेवलप करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस जो स्पोर्ट्स से सीखते हैं, यूनिटी सीखते हो, अलग डिफरेंट प्लेयर के साथ खेलते हो, तो यू टेंड टू लर्न सो मैनी थिंग्स। मुझे लगता है कि फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए। I remember when we were expecting Gracia, and I think delivery ke time pe we were waiting for her to come. It took good 5 days, and we were in the hospital for 5 days. I was exhausted. What were you feeling? नहीं, टफ था वो। उस टाइम पे आईपीएल का जो मैच मिस हुआ था, उसमें लकीली 4-5 दिन का टाइम था। That was the only match you missed ever in IPL. 165-170 गेम आई प्लेड इन अ रॉट। आई थिंक मेरे लिए ग्रासिया और आपका वेल बीइंग होना अच्छा था, एंड थैंक्स टू ममा, शी केम देयर, माय मदर इन लॉ। बट उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, देन वी हैड टू गो। फिर वो अलग चीज़ें थी, डॉक्टर वाज वेरी गुड। तो वो अलग फील थी जब ग्रासिया को हमने देखा। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, कि शी होल्ड आवर फिंगर। फिर एक अलग होता है। आई थिंक सबको बेटी होनी चाहिए। आई थिंक बेटी टॉट यू सो मच, हाउ यू आर एज ए फादर, हाउ यू आर एज ए हस्बैंड। आई थिंक being a husband, being a father, being a brother, I think everyone should have a daughter. I think it's different feeling altogether.
I remember when we were expecting her, you always said कि बेटी चाहिए. Why did you say that? आई थिंक बेटियां होना बहुत ज़रूरी है घर में वो, क्योंकि आई सॉ दैट इन यू बीइंग ए डॉटर, बीइंग ए सिस्टर, यू हैव अचीव सो मच इन योर लाइफ. और समय मुझे लग रहा था बेटी ही होगी वो, क्योंकि मैं वो एक चाहता था कि मैंने सिस्टर को, जैसे हम लोग कभी बात करते हैं, आई थिंक बेटी का होना एक अलग ब्लेसिंग है वो, जो वी फेल्ट इट जब वो पहले वो अपना मैजिक येस में शी यूज्ड टू गो, अपना फिर स्कूल का करना. आई थिंक मेरा बॉन्डिंग उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं. नाउ शी इज़ सो मैच्योर्ड. तो हर घर में बेटी होना बहुत ज़रूरी. आई रिमेम्बर जब हॉस्पिटल से हम लोग वापस घर आए थे, आफ्टर शी वॉज बोर्न, आफ्टर 2 hours you left to the airport to come back to India. It was very difficult for me to be with her alone, and I missed you so much. How hard was it for you? पुराने घाव ताजा कर रही हो क्या? No, but I नहीं, mean, टफ होगा डेफिनेटली. आई थिंक what did you feel? I mean, नहीं, मैं see, कैप्टन था. as a mother, मेरे लिए of course I was going through a different phase altogether. But अपनी wife को, अपने न्यूबॉर्न बेबी को छोड़ के you had to come back to India. नहीं, उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट था और जाना था, क्योंकि मेरे पास प्लान बी नहीं था, क्योंकि मैं कैप्टन था गुजरात लायंस का, और हम ऑलरेडी आरसीबी से हार चुके थे बैंगलोर में. वो भी एकदम वन साइडेड मैच हुआ था. फर्स्ट ईयर आई रिमेंबर कि हम लोग टॉप ऑफ द टेबल थे वो, तो फिर बुला रहे थे. बट डेफिनेटली आई मिस्ड दैट पार्ट. बट जैसे ही ख़त्म हुआ देन आई केम बैक, क्योंकि वो फिर वो नहीं जा सकते आप उसका वो सोच के. अगर मैं अभी बोलूँगा कि नहीं आई मिस्ड यू, तो मेरे वो जो कप्तान में बना था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे पता था कि यू विल हैंडल एवरीथिंग वेल. बट वो मोमेंट जो मिस हुआ, वो आई थिंक मुझे लगता था कि इट कुड हैव बीन बेटर. बट उस टाइम पे आईपीएल होता है, तो You उस only टाइम got here like 2 hours with her. 2 घंटे फिर आए. उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मज़ा आया जब शी बिन कमिंग लॉट ऑफ मैचेस. शी केम टू बैंगलोर, आई रिमेंबर, और सारे मैचेस के लिए आ रही थी वो. तो अलग हो जाता है फिर वो. आई थिंक वो टफ था, जैसे तुम्हारे लिए होगा, कि उस टाइम पे सारी चीज़ें होती हैं, एक अलग तरीके का एक डेवलप होता है ब्रेन, और एक बॉन्डिंग होती है फादर और डॉटर की. आई थिंक उसके बाद हमने अच्छे से मैनेज किया. They say कि mothers always feel a bond with children. क्योंकि pregnancy के time पे they start connecting with the babies, and after delivery even more. But fathers के लिए it starts when the children start interacting. Not like the baby, but once they start interacting. नहीं, आप चेंज हो डायपर भी चेंज किया मैंने. और आई थिंक बॉन्डिंग तो होता है डेफिनेटली वो. बट मुझे वो था कि जब मैं और खेलूँगा, वो मुझे मोटिवेशन मिला जब व्हेन शी बॉर्न. मैंने कहा मुझे और खेलना है वो. देन आई मेड ए कम बैक टू इंडियन टीम. आई वर्क रियली हार्ड ऑन माई फिटनेस. देन आई प्लेड इन 2008 इन साउथ अफ्रीका. आई बिकेम ए मैन ऑफ द टूर्नामेंट. फिर 2019 में इंग्लैंड गए, फिर आईपीएल जीते हम लोग 2021-22 में. तो मुझे लगता है वो मोटिवेट और हुआ कि नहीं, अभी बेटी आई है. 2018 में हम लोग आईपीएल भी खेले साथ में. तो बच्चों को देख के फिर अलग एक फादर का वो रहता है कि नहीं, आई वांट माय डॉटर टू एंजॉय मोर, क्योंकि वो आईपीएल इन इंडिया में बहुत अलग एक फेस्टिवल है वो. और बच्चे अभी देखो आपस में उनका ग्रुप बना हुआ है, चाहे जीवा हो धोनी की डॉटर, चाहे हमारी डॉटर ग्रासिया हो, हिनाया हो, चाहे इमरान ताहिर का बेटा हो. तो जो बॉन्डिंग होती है ना, वो ये चेरिश करेंगे वो फॉरएवर. उनको नहीं पता कि those are the most precious memories they have. But did you feel like after Gracia was born, your first child, and she held your finger, remember? I still have that picture. What was the feeling like? Amazing. I think as I said कि वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो. मुझे याद है कि मैंने वो कैप पहना हुआ था, और उसने भी वो पूरा अपना वो पहना हुआ था. And she kept looking at you. हाँ, तो बहुत स्पेशल था वो. मतलब मैं देख के एकदम वो हो गया था कि मुझे, मेरी आंखों में भी वो एक था कि अलग प्राइड मोमेंट था वो. कुछ शिफ्ट हुआ माइंड में? You felt as a different as a person? Different as a person, I don't know, but I felt very proud कि what you look after your body in 9 months, and then you deliver a baby जहाँ पर circumstances were different. You were traveling, you had to focus from work to the मातेhood, जहाँ पे वो मदर बनना. then a lot of emotional stuff was going on. I was traveling. तो वो जो आपने अच्छे से हैंडल किया था, वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. कि जब वो हुई तो टफ़ नहीं होता, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस में, कि मेरा प्योरिटी थोड़ा खेल में था उस टाइम में, मैं खेल रहा था वो, तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है वो. After delivery, mothers
a lot of moms, they go through this whole postpartum phase and even postpartum depression phase क्योंकि उनके hormones change होते हैं, physically इतना कुछ change हो जाता है. क्या fathers को कुछ feel होता है like you're feeling a little sad, नहीं, he depressed? father I think he's always make sure कि family is safe, they are protected by something जो उनको need होती है वो. क्योंकि पिता मुझे लगता है कि इतना बात नहीं हो पाता वो, क्योंकि ही वर्क सो हार्ड एज मदर डज ऑफ कोर्स, बट वो बोल नहीं पाता. चाहे जितने भी फादर आप देखोगे, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लुक आफ्टर कर सकता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है जहाँ पे बेबी और वाइफ उसकी सेफ रहे, उसको दुआएं दे सकता है, या उसको एक अलग तरीके का एक ऐसा इन्वायरमेंट करे जहाँ पर शी फील सेफ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटली स्ट्रांग रहे वो. कि वो फादर का, हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो. एंड एज यू आर सो प्रोफेशनल काम में और इतना सारा वुमेन एम्पावरमेंट करना, देन यू स्टार्टेड ग्रासिया फाउंडेशन, क्योंकि वो पिताजी चाहे मेरे हों चाहे आपके हों किसी भी हों, तो वो इसकी जो 5-6 सिद्धांत हैं, प्रोटेक्ट करना, मेंटली एक स्ट्रांग रखना, वो ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ पर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जो मुझे लगता है एक हेल्दी रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एज अ सोसाइटी हम लोगों ने एक रोल्स डिफाइन कर दिए हैं कि मदर्स इज दे द दे नर्चर, दे नरिश, और फादर्स को हम हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वो बहुत दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फैमिली, मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, दे आर होल्डिंग एवरीबॉडी टुगेदर. इज दैट द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फादर? आई थिंक डोंट यू थिंक इट्स टू हैवी समटाइम्स? हैवी नहीं है वो, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन है वर्ल्ड की. वो करते हैं, लोग सालों से करते आए हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट कभी कभी ब्रेक डाउन होता है जब आप अपने पाथ से हटते हो. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ मैंस, दे क्राइड अ लॉट. कभी कभी टफ हो जाता है उनके लिए, दे कांट हैंडल इट. बट उसमें देन कम्स टू वाइफ, फिर वाइफ उसको सपोर्ट करती. कभी कभी बातचीत से वो चीज़ें निकल के आती हैं कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो क्या गेम से रिलेटेड है, या फिर अच्छा नहीं हो रहा, यू माइट ड्रॉ फ्रॉम द टीम. तो डिस्कशन होता है. देन आप एक ऐसे पाथ पे जाते हो जहाँ पे यू लुक आफ्टर योर माइंड फर्स्ट. अगर बीइंग ए फादर आपका माइंड सही जगह पे है तो आई थिंक सारी चीज़ें इजीली सॉर्ट आउट हो जाती हैं. क्योंकि इंडिया को खेलना, इंडिया के लिए खेलना, वो टफ टाइम है वो, कि वो आपको दिखता नहीं है कुछ भी हो. तो बीइंग ए फादर कोई भी हो, बीइंग ए वर्कर और किसी भी जगह कोई काम करो, उसको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर वो शाम को आए, वो फील करे कि नहीं यार ये मेरा, जब मैं घर आऊँ तो एक अलग माहौल होता है जो आपने हमेशा क्रिएट किया है. वो मेरे गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है वो, क्योंकि मुझे प्राउड करना था डॉटर को, आपको प्राउड करना था. बट मुझे लगता है कि वो सबका अलग एक एक माइंडसेट है वो. और आई वॉज वेरी टफ जब हॉस्टल में जाना, तो मुझे पता था कि ये लाइफ है, और मैंने प्लान कर रखा था कि मुझे एक अलग तरीके की लाइफ जीनी. मैं कभी भी स्ट्रांग रहना, चाहे कुछ भी रहे हो, क्योंकि स्ट्रांग के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, प्लान भी है नहीं हो. Where did you feel more under pressure? क्रिकेट में या फादरहुड में? क्रिकेट में ऑफ कोर्स. वहाँ तो रन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट मैच में ड्रॉ हो आप. फादरहुड तो आपको पता है कि यू आर देयर टू सपोर्ट मी. या बच्चे हैं जो हंसेंगे तो आप ऑटोमेटिक एक अलग जोन में चले जाते हो. खेल में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतने हिंदुस्तान की दुआएं आपके, वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो, आईपीएल का फाइनल खेल रहे हो, टेस्ट मैच खेल रहे हो, आउट हुए तो ट्रोल होना ही है, रन बनाएंगे तो तारीफ भी होगी. तो उसका स्विच ऑफ करना मैंने जल्दी सीख लिया था. स्विच ऑफ, खेले, घर, स्विच ऑन, फिर ट्रेनिंग स्विच ऑन. तो वो करना ना, वो मैन मैनेजमेंट जो ऑफ द फील्ड प्लेयर लोग बेटर करते हैं, वो ज़्यादा सक्सीड होते हैं अपनी लाइफ में. See, we talk a lot about कि फादर्स को मदर्स को किस तरीके से सपोर्ट देनी चाहिए, नो हाउ दे शुड ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. आई वांट टू नो व्हाट फादर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द वाइफ्स, यू नो व्हाट द हस्बैंड्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बस वाइफ्स. खुश रहे वाइफ. उनको खुश. किस टाइप का सपोर्ट चाहिए? नहीं, मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि स्पेशली जब आप यू स्टे अवे फ्रॉम द होम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट आई वुड से कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर. वॉट एवर वेन एवर शी नीड्स यू, यू हैव टू बी देयर. जब हस्बैंड को वो पावर चाहिए तो मेक श्योर कि यू आर देयर. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब यू नीड मी, आई हैव टू बी देयर, नो मैटर. मुझे फिर अपनी चीज़ जो मुझे पसंद है
मैं आपसे ये नहीं कह सकता, मैं नहीं कर सकता वो. Yeah. So you need sometime you also need to be good listener जब you need me कि क्या हो सकता है. डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट सब True. पेरेंट्स के लिए, सब एक Open communication. गुड एब्सोल्युटली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. How do you think parenting has changed over the period of time? अपने childhood में, if you see your father and today you see yourself as a father, कितना change आया है? आई थिंक माई फादर डन सो मच. मैंने अभी उतना नहीं किया हो, बिकॉज हमारे 5 भाई थे, एक बहन थी. उनको तालीम हासिल कराना, उनको एक अच्छे मुकाम में हासिल करना. एंड आई थिंक आई एम टू यंग अभी फादर, कि बेटी हमारी 8 साल की, बेटा 4 साल का है. तो उनका 50% भी कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उतना सुविधाएं नहीं थी. अभी हमारे पास सब कुछ है, एक कॉल पे सब हो जाता है. एंड वी आर सो प्राउड की और सो लकी वी लिव इन इंडिया, जहाँ पर लोग बहुत हेल्पफुल हैं सारी चीज़ों के लिए. तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपना परस्यू करें जो वो करना चाहते हैं. नो प्रेशर कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, कि मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं बोला. आई एम श्योर कि यू आर ऑल्सो एग्री कि जो बच्चों को दे हैव टू बी हेल्दी, जो उनको करना है लाइफ में. और हम लकी हैं कि हमारे ऐसे 2 बच्चे हैं जो दे लिसन टू अस, और एक बहुत काइंड हार्टेड हैं. दे आर वेरी वेरी जेन्युइन सोल, जहाँ पे दे एंजॉय विद अस आवर कंपनी. वो दोनों हमें मम्मी पापा नहीं बोलते हैं. सो दे सी कि ये हमारी फ्रेंड्स है, तो मुझे वो रिलेशन बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, जो मेरे फादर के साथ उतना नहीं था. I'm sure. What I have always seen that you really emphasize the need of expressing feelings and emotions. आप हमेशा बच्चों को encourage करते हो, what you're feeling. Talk about that in a moment, you know. You always tell Gracia, let's talk about what you're feeling, what emotions you're going through. I think important words her routine जब स्कूल से आते हो, आई थिंक वो खुद ही बात करती है. आज मैंने ऐसे किया. रियो because you have bridged that gap, you know. You have encouraged her to speak more freely. और रियो का भी सेम है. वो मम्मा मुझे 3 स्टार मिले, पापा 4 स्टार मिले, मेरा गिफ्ट कहाँ है वो. तो वो हेल्दी एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. आई एम सो लकी कि दे आर लकी कि उनके पास ऐसे टीचर्स हैं जो उनको एक अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको परस्यू करते हैं कि अच्छे इंसान बने. तो मुझे अच्छा लगा जब टीचर्स का. एंड द सेम वे वो डॉक्टर्स भी जो लुक आफ्टर करते हैं उनका, हमारे जितने भी बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना. जैसे आपने पूछा था बीच में कि बीइंग ए फादर, जब वाइफ को जो रिलेशन है वो बच्चों के साथ हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि वो हम लोग के लिए ना एक स्तंभ है दोनों. सो हम क्या बेस्ट कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज वॉच इट. जो हम दोनों करेंगे अच्छा, वो उनको देखते हैं, क्योंकि बच्चों की जो मेमोरी है बहुत शार्प है वो. तो मेक श्योर कि आने वाले टाइम में ऐसे कुछ हम उनके सामने एग्जाम्पल खड़ा करें कि वो लोग भी देखें. कि रियो हमेशा जब कहीं मंदिर से आता है वो टीका लगाता है. हम लोग जब यहाँ गए थे जोधपुर गए थे, उदयपुर में, जब वो पूरा जय श्री राम पूरा वो सब कर रहा था. आई थिंक जो देखते हैं बच्चे, आई थिंक वो उनका वो अच्छा लगता है. वो ग्रासिया का भी सेम है, वो ट्रेडिशनली ड्रेसेस पहनना. एंड वी आर लकी हमारे पास ऐसे मम्मी पापा हैं जो हम मेरठ में यज्ञ करते हैं. बच्चों को एक सराउंडिंग ऐसी होती है कि जो हमारे पिताजी ने, हमारी दादा दादी ने हमें सिखाया है. अगर बच्चे 50-60% भी ये वाला यूथ कर लेगा तो आई थिंक वो बड़े टफ रहेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसा है जो बचपन में यू हैव मिस्ड एंड यू रियली वांट टू गिव टू योर चिल्ड्रन? आई थिंक टाइम, जो मैं नहीं दे पाया, ना सिस्टर को, ना अपने ब्रदर को, नरेश को, ना मम्मी पापा को. इसलिए जैसे अभी लकी अभी मम्मा हमारे साथ हैं, थैंक्स टू यू बीन लुकिंग आफ्टर सो वेल. फिर हम लोग का जो रिलेशन, क्योंकि खेल में ना आई मिस्ड आउट सो मैनी थिंग्स, माई चाइल्डहुड, माई फ्रेंड्स. हाउ क्रूशियल यू थिंक इज रोल ऑफ अ फादर इन लाइफ? And what is that role that fathers play for children? I think communication. एक बात करने का तरीका हो, एक नॉट द येलिंग देम, जब गलत है उनको बताना. और डिसिप्लिन कम्स विद कम्युनिकेशन. अगर आप बात करोगे डिसिप्लिन आएगा, दे विल अंडरस्टैंड कि उनको करना क्या है. तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ, चाहे वो जितने छोटे हैं, बहुत ज़रूरी है. And what you found most challenging? Communicate. With me or with kids? With kids. कि बच्चे कभी हम लोग देखते हैं कि उनका माइंड अलग, इतना फुल ऑफ थॉट्स. जब 8:30 के आसपास तब वो थोड़ा खुलते हैं, बात करते हैं. उससे पहले स्कूल का प्रेशर होता है, फिर आते हैं वो. तो इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेट करना. लिसन टू देम व्हाट दे हैव डन इन स्कूल, किसको कितने स्टार मिले, व्हाट ग्रास इज डूइंग इन देयर आई पॉप, क्या उसने सीखा जिम्नास्टिक में. वो बात अगर वो 10 मिनट भी शेयर करते हैं या 5 मिनट भी, तो आई थिंक विन-विन सिचुएशन है व्हेन यू गो टू स्लीप. Between us,
I'm the one who's always more strict. You agree? Of course, you are strict, but in a good way. And always trying to kind of, really be there to set the right discipline, timelines, everything in place. But you're always more fun around kids. ये fun Even if they're really annoying, you manage to be fun. How do you do fun that? element बहुत जरूरी है वो. चाहे dipping in the jacuzzi or pool, going to the beach, whether they don't want to do it, but make sure I do it because वो जो laugh है ना बच्चों का वो स्पोर्ट्स से याद है वो. बच्चों के साथ बच्चा बनना. बिल्कुल वो बच्चा बनना भी चाहिए हर पेरेंट्स को वो. और आप भी उनके साथ जब आर्ट करते हो इसीलिए मदर्स बोलती हैं आई हैव 3 चिल्ड्रन आई एम डीलिंग विद. बिल्कुल 3 ही बच्चे हैं आपके संभालना तो पड़ेगा आपको. How important it is for parents to be on the same page. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी मैं नहीं रहता उसके लिए सॉरी. आप उसका That's why I asked this question. क्योंकि बच्चे अगर कुछ मन कर रहा है उनका करने का क्योंकि फादर के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो. बट आई ऑलवेज डू दैट. जब आपको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ तो कभी कभी छुट्टी में करता हूँ हॉलीडे में. तो छुट्टी में तो अलाउड होना चाहिए बच्चों को चाहे वट एवर दे ईटिंग वट एवर दे आर डूइंग. थोड़ा लेट नाइट भी जरूरी है हॉलीडे जब होता है उनका. तो आई थिंक दे डिजर्व इट. So you're trying to say I need to loosen up. नहीं As a mother. क्योंकि जब बाहर से इतना आते हैं ट्रैवल वो थोड़ा एक्सप्रेस करने दो खेलने दो उनको. स्कूल के टाइम नहीं करता मैं. अब उनको कुछ खाना है मैं खाना भी बनाता हूँ. आप भी उनके लिए आप खाते अच्छे से बनाते नहीं हो. वैसे वो अच्छे से बेक करती है केक. तो इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है फन एलिमेंट वो कुकिंग से आता है. डूइंग सम एक्सरसाइज एट होम चाहे वो योगा हो चाहे प्लेइंग एट द टेरेस हो क्रिकेट हो स्विमिंग हो. एंड आवर किड्स लव स्विमिंग. इवन रियो लव शॉपिंग फॉर श्योर. कहीं जाता था ये भी ले लो वो भी ले लो. तो उसमें फिर आप बोलते हो कि नहीं ये मत करो. उसमें फिर वो चश्मे का शौक रखता है कैप का शौक रखता है जूते बोते हैं उसके पास. तो लेना जीने दो उनको एंजॉय करने दो. आई फ्रीक्वेंटली हियर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है इन पेरेंटिंग कि my husband is not on the same page with me or my wife is not on the same page with me. How can they tackle this, you think? प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं. आई थिंक एवरी पेरेंट्स हैज़ अ डिफरेंट मूड. तो मूड स्विंग यू कांट शो इट टू द किड्स. जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बीइंग ए फादर बीइंग ए पेरेंटिंग जो आप पूछ रहे हो आप कि उसमें जब मूड स्विंग होगा तो फिर चेंज होता है वो. हम दोनों सेम पेज में तभी रहेंगे जब हम दोनों उस चीज़ को समझेंगे. और बच्चे कैसे समझेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो. बच्चे अगर रात को दे वांट टू ईट आइसक्रीम मेक श्योर इट्स नॉट कोल्ड जैसे हम प्लान करते हैं वो नहीं खिलाते भी नहीं हैं उनको. अभी तो बच्चों ने मांगना भी बना कर दिया है कि सो स्ट्रिक्ट अराउंड देम. वीकेंड में अलाउड है वो फॉर श्योर. बट वो मूड स्विंग नहीं रख सकते वो. कभी कभी होता है. आई थिंक डिफ़िकल्ट होगा बीइंग ए बच्चों को वो बात करना. बट मुझे लगता है जो मातेहुड में आप बात करते हो पेरेंट की थोड़ा लूजन अप ज़रूरी है वो बच्चों के लिए. क्योंकि एक तो डांटना नहीं है उनको. कभी कभी बच्चे रहते हैं क्योंकि डांटने से ना बच्चे फिर ओपन अप नहीं होते वो. इसलिए एक बच्चे के साथ बच्चा बनना फिर वो खेलते हैं जंपिंग ऑन योर शोल्डर वॉचिंग द सॉन्ग डांसिंग ऑन देयर फेवरेट सॉन्ग. तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो. What kind of future do you envision for your children? I think they just enjoy what they want. बिकॉज फ्यूचर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुरादनगर से ये हिंदुस्तान का खेलने का सफ़र करूँगा. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट दे शुड बी हेल्दी एंड दे शुड डू व्हाट दे लाइक टू डू. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हंसते रहें वो. प्रेशर नहीं है कोई भी. क्योंकि आजकल ना बहुत प्रेशर है बच्चों पे पढ़ाई का डूइंग समथिंग. बड़ा भी लॉट ऑफ स्टार्टअप बिजनेस आर सो पॉपुलर. आई एम श्योर कि उनको ऐसा ब्रेन डेवलप हो कि जहाँ पे वो खुद निडर रहें. उनके अंदर ताकत रहे लोगों से रूबरू करने की बातचीत करने की. एक जो मैनेजमेंट हम बात करते हैं वो. तो फ्यूचर तो कभी देखा नहीं है वो. बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि दे शुड स्टडी वेल और एजुकेट हो अच्छे से. जहाँ पर उनको एक जो हम दोनों हमेशा कोशिश करते हैं कि एजुकेशन कैन चेंज योर future in any manner. True. Do you want them to pursue sports or They cricket? can do whatever they want. Cricket हो, पढ़ाई हो, डॉक्टर हो, IAS, IPS की तैयारी करें. Is it your dream कि मेरा बेटा या बेटी क्रिकेट खेले? नहीं क्रिकेट नहीं खेलें. बहुत प्रेशर है. बहुत लोचा है उसमें. अरे मैं चाहता हूँ खेलें. आई थिंक वो तो नसीब है वो. बट जो मैंने चीज़ें देखी हैं मैं चाहता हूँ कि आई रियली वांट they should pursue their career in civil service.
Okay. IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बिकॉज दे डू सो मच फॉर द सोसाइटी. पावरफुल बने वो, जहाँ पर वो चेंज करें सिस्टम को जो गलत हो रहा है वो. और डॉक्टर बने, जो हमने लॉकडाउन में देखा कि जब रियो हुआ था लॉकडाउन में, दे हैव वर्क सो हार्ड. True. ट्रैवल करें वर्ल्ड, अलग अलग फूड ट्राई करें, देखें दुनिया में कितनी खूबसूरत जगह है वो. क्यों ट्रैवल से बहुत सीखा. 20 साल मैंने बहुत ट्रैवल किया वर्ल्ड में. अलग अलग डिफरेंट कुजीन ट्राई करें, लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि कहाँ पर कितना अच्छा होता है. वे लकी की पूरा यूरोप हमने देखा है वो. और ट्रैवल से ना बच्चे एक स्ट्रांग बनते हैं, उनका कैरेक्टर एक अलग तरीके से परस्यू होता है. बट उनका चॉइस है वो, जो भी उनको बनना है. वी नीड टू सपोर्ट दैट. As a father, what is the most important quality that you have attained? जस्ट But टॉक as टू a देम. quality as in कि माइंड और स्ट्रांग हो गया है या नहीं, डिटर्मिनेशन, ठहराव आ गया. पेशेंस हो गया है. पेशेंस डेफिनेटली नंबर वन. उनके साथ उनका साइकी That I can जाना second. पेशेंस तो बहुत आ गया. बहुत आ गया भाई. आना पड़ा. साइकी जाना बच्चों की, कि ग्रासिया रियो दोनों अलग हैं. उनका माइंडसेट बहुत अलग है वो. रियो का थोड़ा अलग है. ग्रासिया शी इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. शी वांट व्हाट शी लाइक्स. रियो अभी थोड़ा छोटा है. मुझे लगता है कि ठहराव भी आया थोड़ा. उनका माइंडसेट पता चला कि क्या उनको पसंद है. Yeah. एंड वी आर लकी, वी सराउंडेड बाय आवर फैमिली. Yeah. तो एक अलग एक फैमिली वैल्यूज़ उनको पता है. दे ऑलवेज वांट टू प्ले विद देयर ब्रदर्स. उनके अपनी जो दोस्त हैं, तो वो जो आपने पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो. Have you ever struggled with your mental well-being? आई थिंक बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता नहीं होता कब आपको डिप्रेशन में हो, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं. बट टच वुड मुझे कभी ऐसा नहीं फील किया मैंने. मे बी वो पता नहीं चला होगा. आई एम श्योर कि हुआ होगा जब यंग एज में आप गुजरते हो, खेलते हो. बट वो फील नहीं हुआ कभी. वो मे बी परफॉर्मेंस हो गया तो ठीक हो गया, कि मेरा रिलेटेड खेल से ही रहता था. अरे यार अच्छा नहीं हुआ वो, Yeah. कल ड्रॉप हो सकते हैं. वो एक परफॉर्मेंस करने की एंग्जाइटी थी अंदर, टू प्रोसेस फॉलो करना कि नहीं ये सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. बट माइंड को एक अलग सा बताना हो, क्योंकि कभी कभी जब आप कोशिश करते हो अच्छा करने की ना, एक ऑटोमेटिक एक एंग्जाइटी रहती है परफॉर्मेंस करने के लिए. क्योंकि मैं इंडियन टीम के लिए ना 6-7 नंबर खेलता था. वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है वो. अगर आप 5 सीरीज रन नहीं बनाओगे आप ड्रॉप हो सकते हो. क्यों मुझे कभी 10 ओवर खेलने को मिलते थे, ऊपर से आउट हुए तो 20 ओवर मिलते. तो मुझे लगता था कि 20 ओवर मिलेंगे तो मुझे 100 बनाना है, 70 बनाना है. जब 10 ओवर होते थे, 15 ओवर, या 15 बॉल पे 40 बना दूँ, 20 बॉल पे 50 बना दूँ, वो बड़ा रेयर होता था वो. तो उसमें आप बोल सकते हो कि वो टाइम पे मेंटली स्ट्रांग था. लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होता तो वो फिर मैं एकदम ड्रॉप होता था मेरा एनर्जी. अरे यार आउट हो गया, यही तो मौका मिला था. तो उसको मैं बोल सकते हैं आप कि उस टाइम थोड़ा टफ था. लेकिन मैंने उसको मैनेज किया अपने प्रोसेस में कि लेट्स गो फॉर ए प्रैक्टिस. कहाँ मिस्टेक किया मैंने, ऐसे नहीं खेलना चाहिए था. तो वो मैंने उसको रेक्टिफाई किया. फिर उसको मैंने गेम अवेयरनेस में बदला कि मैं ऐसे ही कर सकता था. और आई वाज लकी, आई वाज बैटिंग विद MS यूवीपा. तो वो दोनों अलग माइंडसेट था. मेरा थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट था. हम तीनों ने बड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया. आजकल बच्चों में बहुत यंग एज से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. दे आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, एंजाइटी, a strange kind of FOMO, depression, and you have a huge following of these young children. What message you want to give out to them? आई थिंक मैसेज यही है थ्रू योर पॉडकास्ट मातेहुड. आई थिंक कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, प्ले आउटसाइड, लीव द टैबलेट, लीव द फोन, गो टू द ग्राउंड, प्ले एनी स्पोर्ट, Yeah. जस्ट रन अराउंड, लाफ अ लॉट, एंजॉय योर गेम. बट ये जो डिजिटल गेम स्टार्ट हुए हैं, जो आप देखते हो कि इसीलिए उनको एंग्जाइटी हो रही है. दे आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच. इतना सारा कंटेंट जो आ रहा है, आई एम श्योर कि काफ़ी पेरेंट्स उसके लिए परेशान हैं. और दे शुड स्पीक टू देयर पेरेंट्स कि मुझे यहाँ खेलना है. एवरी पेरेंट शुड इंकरेज देम टू गो आउटसाइड एंड प्ले स्पोर्ट. चाहे ऑफिस की छुट्टी लेने पड़े, हफ्ते में 2 दिन करो, 2 घंटे उनको लेके जाओ. बच्चा नहीं भी जरा मेक श्योर उसको जस्ट चलो वॉक पे जाते हैं, चलो गार्डन में बैठते हैं, टेक द सन, सिट विद सन, वो स्मेल लो, पसीना आना चाहिए. कि मैंने वही किया, आपने भी वही किया. और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बच्चों को हो रहा है ये. और मुझे लगता है कि वो बच्चे फिर इसीलिए आप देखो छोटे शहरों से बच्चे आजकल अपना कैरियर ना स्पोर्ट्स में परस्यू कर रहे हैं. हमने देखा नीरज चोपड़ा को देखा, मैरी कॉम को देखा, अभी वो मनु बाकर इतना अच्छा करके आए, या
इतने सारे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट हैं वहाँ पर आपके डॉक्टर की टीम है, आपकी फिजियो की टीम है, आपके पास एक कंटेंट पर्सन है, आपके पास एक मैस्यूस है, वो आपकी निडलिंग कोई कर रहा है, कपिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन स्पोर्ट्स में ज़्यादा चैलेंज है, लेकिन वो बच्चे आ रहे हैं जो छोटे शहर के, क्योंकि वो पहले से मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो घर में वैसा कल्चर बना, हरियाणा देख लो, पूरा पंजाब देख लो, यूपी बिहार देख लो, महाराष्ट्र आप देखो, एथलेटिक्स में इतने लोग बच्चे आ रहे हैं। अभी बीच में हमारे सॉकर में इतना अच्छा था, वो जो ISPL स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत प्लेयर बाहर आए हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो एक रिलीजन है इंडिया में। वो एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू बी सचिन, एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू बी विराट कोहली। बट वो जो उसके पीछे जो मेहनत है उनके पिताजी की है, उनके कोचेस की, अचरेकर सर की है, विराट के कोच की है, मेरे कोच की है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बाहर खेलना बहुत जरूरी है। So you think that sports can really help them come out of this phase of anxiety, depression, mental health issues? बिल्कुल, और स्कूल की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आप स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करते हो स्पोर्ट्स लेक्चर में, और कितना आप मेडिटेशन करते हो। अगर हम लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत योगा हमने साथ में किया है, बहुत बहुत ज़रूरी है वो। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि स्कूल की टीचर करेंगे वो, कि मदर को, फादर को उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अभी सब दे फिटनेस फ्रीक, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छे डांस कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप देखो कि जिम्नास्टिक कर रहे हैं, और कल्चर हमने बाहर देखे, उनके स्कूल में स्विमिंग कंपलसरी है, हमारे स्कूल में बच्चे भी करते हैं वो। तो दे हैव टू प्ले आउटसाइड। उसमें क्या है, थोड़ा थकेंगी बॉडी। और 8 से 15 साल के बीच में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी बॉडी डेवलप होती है। वो अलग शेप में जाता है। अगर आप घर में घुस के फ्राइड खाते रहोगे, अपने ब्रेन को डेवलप नहीं करोगे, एक ऐसे जोन की गेम में जाओगे जहाँ पे आप बार बार एक अलग सा प्रेशर फील कर रहे हो। आई थिंक यू कैन प्ले इफ़ यू वांट टू प्ले 1 आवर, और उसमें भी आप चूज़ करो क्या हो। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है उसमें। और आई ऑल्सो फील कि पेरेंटिंग अभी पहले से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इन द व्हाट डू यू सेंस, मीन बाय डिफिकल्ट हो गया? difficult in the sense for our parents, you know, there were not too many distractions, like in the sense like जंक के नाम पे इतनी चीज़ें नहीं मिलती थी, स्क्रीन का इश्यू नहीं था बिकॉज वी सिंपली हैड नो स्क्रीन टाइम, बट नाउ द पेरेंट्स हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन चिल्ड्रन to restrict them from screen, eating junk. क्योंकि एज यू You have सेड to really push kids to go out and play. बिल्कुल, आपने Our पहले parents had to stop us from going out and play. बेलन लगते थे, बेलन और झाड़ू मम्मी के। बट बहुत इंपॉर्टेंट, उसी में तो पेरेंटिंग काम आती है। वो बच्चे अगर नहीं बाहर बाहर खेलेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि स्वेट कहाँ से आएगा। वो दे ऑलवेज इन द AC रूम, और जब बाहर खेलते हैं, अभी तो वेदर अच्छा है इधर, तो मुझे लगता है कि खेलना बहुत ज़रूरी है वो। उसमें ब्रेन डेवलप होता है, बच्चों का ब्रेन डेवलप स्पोर्ट्स से बहुत होता है। वो स्विमिंग से आप अपना हेल्थ एक अलग वे में जाती है, आपका बॉडी डेवलप होता है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों में आजकल कम है वो है एंडोरेंस। जो सिर्फ खेल ही आप भागोगे 2 राउंड 3 राउंड, स्विमिंग करोगे 10-15 लैप, वो तभी पता चले, तो आपको कैपेसिटी पता चलेगी अपने लंग्स की, अपनी एक अलग माइंडसेट की, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कभी हम जाते हैं बाहर खेलते हैं तो बच्चे अभी बहुत टैलेंटेड हैं, और ये कोचेस का भी इम्पोर्टेंट, बहुत एकेडमीज़ हो गई हैं, बहुत अलग स्पोर्ट्स के टीचर्स आ रहे हैं। तो ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको बाहर लेके जाना और उनको बोलना कि खेलो थोड़ा बाहर। Yeah, I think you very rightly said कि physical activities are very important. At the same time, role of schools is very important because I think they spend most of their time at school. और वहाँ पे उनके लिए एक happy environment होना, एक encouraging environment होना is very very important. Another massive shift जो over the period of time I have seen कि we are starting to have very open conversation with our children. If you see 20-30 years back, there was no conversation within the families about menstruation, for example, or physical well-being or adolescent health of children. But today, it's very common. हम अपने बच्चों को educate कर रहे हैं about all the changes they're going to go through, how their bodies are going to change, what hormonal changes they'll feel, everything, you know. Once they enter puberty and teenage, how they will be changing physically, mentally, emotionally. Are you open to have such conversations openly with your children? You think you'll feel that comfort? एब्सोल्युटली, वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बच्चे खेल नहीं रहे हैं, और जो प्यूबर्टी है, जो उनका एडल्ट्रेशन है, वो बहुत एक एज से पहले आ रहा है। Yes. तो दे नीड टू लुक आफ्टर देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना 8 साल 9 साल में ऐसे कुछ होगा।
क्योंकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उनकी बॉडी चेंज होगी, हार्मोन्स चेंज होंगे, उनको पता नहीं उस एज में, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चों के साथ, देन उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्पोर्ट्स उनको डेवलप करेगा, बॉडी को स्ट्रेंथ देगा उसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एज ऑफ 8-9 दे कांट होल्ड दैट पेन, इज़ वेरी टफ। और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उनसे किस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, उनको किस वे में बातचीत करते हो, कि मुझे लगता है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कम्युनिकेशन विद द किड्स। This is more of a gender sensitization, I would say. क्योंकि olden times में usually it was mother's role to explain to kids periods क्या होते हैं, what you will feel, menstruation cycle आएगी, this is what you need to do, this is what you need to be careful of. But I feel fathers का भी अब role बहुत important हो गया है इस conversation में, especially with the boys. Because ये sensitization सिर्फ girls को ही नहीं चाहिए, boys को भी चाहिए. You need to educate your boys as well about everything they are going to feel, and also about the sister, about the mother, and family dynamic in general. How open you think the father should be to be a part of this conversation, और इस conversation को lead करना चाहिए उनको family? नहीं, बिल्कुल, मैंने एज आई सेड अर्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है वो। और बीइंग ए पेरेंट्स हम दोनों वो चीज़ करते हैं, और ज़रूरी है, स्कूल की टीचर भी बात करते हैं। और स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, उसमें डेवलप होता है बॉडी, एंड यू डेवलप योर ब्रेन, जहाँ पर आपको ताकत मिलती है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि सबका बॉडी डिफरेंट है, सबका माइंड सेटअप बहुत अलग है। आई एम श्योर कि एवरी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और करना भी चाहिए वो, एज यू राइटली साइड, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर नहीं होगा तो कौन बात करेगा उनसे वो? तो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, एंड दे शुड ऑल्सो फील कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। क्योंकि स्कूल में उतना नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि ये स्कूलों में भी होना चाहिए। घर पे हम करते हैं, एंड यू ऑलवेज मेक श्योर कि दे शुड ऑल्सो नो। एंड हम दोनों के बच्चे वो बताते भी हैं, रियो ज़्यादा सेंसिबल है, ग्रासिया, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और हमारे इस सोसाइटी में हर बच्चे के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ती है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और एक सेंस ऑफ एक करेज आता है अंदर से कि आई एम श्योर आई विल स्पीक टू माई मॉम, आई विल स्पीक टू माई डैड। तो एक जीने की ताकत मिलती है जब अंदर वो चीज़ रहती है। जब वो ओपन नहीं होते तो अंदर ही अंदर चीज़ वो घुटती रहती है, जो नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे हैं आपके मातेहोod में, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। We are sitting today on the sets of Matehood, and the core purpose of this show is to talk about important aspects and phases of life. And people watch you, they idolize you. You can be a role model to encourage other fathers to have this open conversation. And if I speak for India, क्योंकि हम लोग ओपनली ये सब कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं फैमिलीज़ में, जहाँ से लीड होने चाहिए, सो देयर आर सो मैनी unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases, and young pregnancy, teenage pregnancies, वो सब हो रहा है हमारी कंट्री में, बट हम उसको अवॉइड कर रहे हैं एज अ फैमिली, एज पेरेंट्स। Do you want to say something to today's fathers कि कितना ज़रूरी है कि हम ये कॉन्वर्जेशन फैमिली में लीड करें, अपने बच्चों को इस फ्रंट में बहुत राइट एज से एजुकेट करें? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बोला वो मैं तो यही बोलना चाहूँगा सबको कि आई थिंक बच्चों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी में बात करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी ग्रुप्स बने हैं बच्चों के, उसमें जो लीड कर रहा है उसको बात करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के जो प्रिंसिपल के साथ जो टीचर हैं, जो क्लास में जो मॉनिटर है, उनको बात करना चाहिए। क्योंकि ये जो आपने बात करी है, मैं तो अर्ज करूँगा कि सबको बात करना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो अपने लाइफ को परस्यू करना चाहता है इन ए वेरी वेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मैनर में हो, जहाँ पे वो चीज़ों को समझे, फिर उस चीज़ को आगे जाके एग्जीक्यूट करे। जब उसको अच्छे से पता चले तो पास ऑन भी करे दूसरे बच्चों को, जो उसके स्कूल मेट्स हैं, चाहे उसके ट्यूशन में मेट्स हैं, कि ऐसे माई मम्मा टोल्ड मी, आपकी घर में ऐसी बात होती है, प्लीज़ टेल योर डैड टू स्पीक टू मी, प्लीज़ टेल योर मॉम टू टॉक टू मी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे आपस में बहुत एक दूसरे से ओपन बात करें, हम दोनों करते हैं। आई एम श्योर कि ग्रासिया भी जब बड़ी होगी तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पास ऑन करना बहुत जरूरी है, और हम लोग करते हैं तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। It is the right information. Absolutely. No wrong information there. Do you have any regrets in life? No regrets. Very happy. What do you the way it has turned out to be. Absolutely. Regret क्यों होगा वो? No regrets.
Any fears? No fears. Some. When you're there, no fears. Oh, truly touched. And But you have any regrets? not regrets, but there's still things I want to pursue and I haven't finished. Mhm. Like my masters. I want to finish my masters. Of course, you should do it. So things are pending, Mhm. and I want to continue doing those. And fears? Fears, I think, not fears, but certain things that really bother me for my children. One is the climate that really bothers me for the future, for my kids. Secondly, of course, the mom guilt is always there. What do you Am I mean by doing mom? it right? Am I doing it वो enough? गिल्ट नहीं है, वो you're thinking, you're preparing yourself कि गिल्ट क्यों बोलती है उस चीज को? गिल्ट थोड़ी ना है. I mean, it's a common term, and most of the mothers go through that. जिसमें हम लोग constantly अपने आप को question करते क्योंकि मॉम डैड कितना भी करे ना, एक माइंडसेट में रहता है वो, वही। यार और कर सकते थे. हैं वही या बट differently उसको कर गिल्ट सकते नहीं हैं. बोलेंगे, उसको मुझे लगता है राइट वर्ड जो होगा, प्लानिंग और बेटर कर सकते हो. क्या बच्चों को अच्छा, कभी कभी वो नहीं होता तो बच्चे जब नहीं करते तो यार वैसे हो गया वो. इसीलिए बच्चों के साथ बच्चा बनना जरूरी है, उनके माइंड साइकी जानना बहुत जरूरी है. I'm working on that. नहीं, यू डूइंग फैंटास्टिक, बिल्कुल. और जो इम्पोर्टेंट है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो, तो उसको कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है. What do you think about your spiritual inclination? नहीं, आई रियली एंजॉय दैट. और अभी रिसेंट टाइम से स्टार्ट हुआ है, पहले भी था. You've always been very spiritual ever since I नहीं, वर्ल्ड कप been with में you. स्टार्ट किया था महामृत्युंजय मंत्र करना. आशीष भाई ने मुझे बताया था, आशीष नेहरा ने. फिर सचिन पाजी बहुत पूजे, साईं बाबा टेम्पल में बहुत जाता था, सिद्धि विनायक बहुत जाते थे. उसके बाद नासिक में अपने त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बहुत जाते थे. अपना अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में हर बर्थडे में जाता था. जब हम लोग की शादी हुई फिर मैं पांडिचेरी गया, नवग्रह टेम्पल. वो बनता रहता है वो, और वो फील करने की बात है. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा. अब अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ होगा. एक सोल रहती है, पावर. और एक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी इतना डिस्ट्रैक्शन है वर्ल्ड में. आपका जो एक आसपास की जो चीज़ें उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे. चाहे वो हनुमान चालीसा हो जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे. वो हम कहीं बाहर जाते हैं, हम महादेव की पूजा करते हैं. अभी कुंभ भी होके आए, कितने अच्छे दर्शन हुए हमारे. 144 साल के बाद मून, जुपिटर, ये जो अर्थ जो कंप्लीट हुआ, एंड वी आर लकी, हमें अच्छे से वहाँ पर दर्शन हुए. और वो बना हुआ था, वो भी बुलाते हैं. फिर वैष्णो देवी हम गए आपके बर्थडे में उधर. वो फिर पद्मनाभन टेम्पल हम अच्छे से दर्शन, मतलब वो लिखा रहता है. जब फील हो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मंगलवार का फास्ट था मेरा. मुझे 1-2 दिन पहले नीम करौली बाबा के सपने आ रहे थे वो माइंड में. यार बाबा दिख रहे हैं. मैंने कहा मैं तो कभी गए नहीं इधर. नेक्स्ट डे आई स्पोक टू माई फ्रेंड, यार आई फील लाइक गोइंग देयर. तो ऐसे प्लान में इतने अच्छे दर्शन में जब वहाँ से आया, फिर मुझे भेष में कोई मिला वो, आप नीम करौली बाबा हो के आए वहाँ. मतलब वो फील करने वाली बात है. सबका अलग होता है वो. तो मुझे लगता है अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है सोल को पीस करने के लिए, एंड यू हैव टू डू दैट. इसलिए मुझे लगता है कि वो यू गिविंग बैक टू योर रूट्स, just to get the kavach around you, to give that blessing to your kids, giving that रूह जो एक पॉजिटिव बनती है. क्योंकि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं खेलता था कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती थी, मेरा ऑटोमेटिक अच्छा होता था. और ऐसे प्रेशर में मैं अच्छा करता था जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे, जो मुझसे भी टैलेंटेड थे. जब मैं उस सिचुएशन में आता था, मुझे लगता था यही तो मैं ढूंढ रहा था. तो वो पावर तभी होती थी जब मैंने बिलीव किया अपने ऊपर, जब मैंने उसको नर्चर किया प्रैक्टिस से, जब मैं सिचुएशन में जाके थोड़ा काम रहा बॉडी को, और उस चीज़ को मैंने समझा कि यहाँ हीरो बनना है. तो वहाँ पे एक अलग थिंकिंग लगती है, एक अलग मेडिटेशन लगती है, और एक अलग माइंडसेट लगता है उस सिचुएशन को विन करने के लिए. जो मुझे लगा मैंने बहुत किया जब मैं खेलता था. वो चिप्स आर डाउन, नहीं रैना को भेज दो. वहाँ पे मैंने अच्छा किया. वर्ल्ड कप में हम फंसे हुए थे, रैना को भेज. पाजी भी खुद बोल रहे थे ना, तू जा अभी जाके खेलो. तो जहाँ टचवुड, गॉड हैज़ बीन रियली काइंड ऑन माई जर्नी. जहाँ पर मुझे लगा नहीं यार आज तो मुझे हेडलाइन चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो मुझे लगता था कि मैं ढूंढता था वो. तो वो मुझे अंदर से एक आध्यात्मिक ताकत जो मैं बोलता हूँ मुझे फील होता था. क्योंकि मैं अब आज सोचता हूँ कि मैं कहाँ मुरादनगर से हम लोग, कभी मैं सोचता हूँ लगता है सपना है ये, मैं खेला ही नहीं हूँ. क्योंकि जर्नी जो रही है बहुत टफ रही है, फुल ऑफ हार्डवर्क रही है, और सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस बहुत हुआ है. लेकिन जब मैं बुक लिख रहा था अपनी बिलीव, तो उसमें इतनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोचा ये हो चुका है मेरे साथ, ऐसा मैं कैसे खेल गया हो. तो ताकत तो है,
यूनिवर्स में बहुत ताकत है, अगर आप फील करोगे, अगर आप रियली कुछ करना चाहते हो अचीव में, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे लेकिन चलते रहो आगे, देखी जाएगी जो। आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आए आफ्टर योर स्पिरिचुअल? नहीं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जब आप मेरी लाइफ में हंसी बढ़ गई। No, in terms of spirituality, मैं फील has मोर, it changed you as a person? ना हम एक अलग पीस है अंदर, वो बता नहीं सकते, वो पेशेंस के साथ एक अलग लाइफ है वो। Do you want your kids to follow the path of spirituality? दे शुड डू वॉट एवर दे फील लाइक डूइंग। मैं उनको नहीं बोलता कि ऐसे करो, लेकिन जो मैं उनके आसपास करूँगा, अगर वो देख रहे, अगर उनका दिल होगा तो दे शुड रियली डू इट। वो नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना है। अगर मैं पूजा कर रहा हूँ सुबह, या मैं नहाने के बाद गंगा जल शिवलिंग पे कर रहा हूँ, या रुद्र अभिषेक कर रहा हूँ, हमने किया भी है गाजियाबाद में दुधवेश्वर में, और 1 जनवरी को किया था। हम जब सावन भी आए थे तब आपने भी किया था। हम याद है कि हम कुल देवी जम्मू में भी गए, जहाँ मेरा था। कुल देवी के शादी के बाद जाते हैं, फिर आपके नाग बाबा वहाँ पे शादी के बाद जाते हैं। वो बच्चों के लिए दुआएं होती, करना चाहिए वो। और ये बना है, सदियों से बना है, सब लोग करते हैं वो। लोग मक्का मदीना जाते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, पूरी टीम के लिए दुआएं होती हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जब घंटे बजते हैं, यज्ञ होते हैं, वो सबको करना चाहिए। वो हमारा रूट्स है वो। वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर वो देखेंगे तो एक अलग एक जोन में रहेंगे, उनको ऊपर वाला उनकी दुआएं देगा, उनको खुश रखेगा। How are you enjoying your entrepreneurial journey? You've started so many restaurants, and you are a very integral part of Mate. You're always there to support me, encourage me, and also इतने सारे new ideas about products and everything. How are you enjoying? Are you enjoying it? नहीं, बिल्कुल। और ऑल credit goes to you. I think Mate has been amazing, organic brand, and you worked really really hard. रेस्टोरेंट का भी जो हमने हॉलैंड में किया था, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ यू। और यूनिक फूड है वो। आई ऑल्सो ओपन वन मोर इन गुड़गांव, जैन लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ फैब में रेडी हो जाएगा वो। आई थिंक फूड तो इतने साल हम रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो हम करते हैं, बिकॉज मैं तो हाफ द टाइम टूर पे ही था वो। आई थिंक यू आर द ओनली वन हु चैनलाइजिंग एवरीथिंग कि कैसे उसको कर सकते हैं। एंड माते तो एक अलग कोर है आपकी तरफ से, जो आपने इतना हैंडल किया है। यू बीन टू केरला, यू हैव सीन द फैक्ट्री, हाउ द पैकेजिंग डन सो प्रोफेशनली, एंड द ब्रांड इज़ सो ऑर्गेनिक, एंड इट्स मेड इन इंडिया। और बहुत लोगों के अच्छे जो रिव्यू आते हैं, तो इट्स सो प्राउड टू सी दैट कि योर ओन ब्रांड गोइंग इन ए वे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो माते आपने नाम रखा है, तो वो मेरा बड़ा अलग नाम है, संस्कृत वर्ड, एंड माते मीन्स मदर, माँ। तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो जिस तरीके से यू बिकेम ए मदर, देन यू स्टार्टेड डूइंग सो मेनी थिंग्स अराउंड ग्रासिया रैना फाउंडेशन, लुकिंग आफ्टर दोस्त मदर जिनके लिए आप मिडवाइफ का कल्चर लेके आए, उनका वेल बीइंग, सारे डॉक्टर के पास जाना। आई स्टिल रिमेंबर जब हम चंडीगढ़ गए थे मैच के टाइम पे आए थे आप, वो जेल में जाना, उन मदर्स के बारे में उनकी स्टोरी टच करना। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी गुड कि आप आउट ऑफ द वे में जाके वो चीज़ करना। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स म्यूचुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग, बिकॉज माते इज समथिंग इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और जो भी माते उठ के आपने शोज़ किए हैं, फर्स्ट आपने मेंटल हेल्थ का किया, डॉक्टर के साथ किया, फिर रितेश के साथ किया, पलकी के साथ किया, एंड इट्स ऑल अराउंड द मदर्स। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितने लोग ओपन अप आए। और सबसे मेरा जो फेवरेट था, अडॉप्शन इन इंडिया, कैसे वो होता है कि उसमें इतना, मैं उस शो में था तो मुझे लगा कि ऐसे भी होता है। वो जिस पर्सन ने वो बात किया, जो मैम ने बात किया, तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कोई लोग हैं जो कितना प्राउड वर्क कर रहे हैं अराउंड द सोसाइटी, एंड आपने उनकी लाइफ को टच किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, इट्स बीन अमेजिंग जर्नी ऑफ योर्स। Okay, now you can move on to asking me questions. अच्छा, If you wish to. जब मैं खेल रहा था, जब मैं कैप्टन था गुजरात लायंस का, आई एम श्योर कि यू वर वेरी इंडिपेंडेंट, एंड शादी से पहले आप 10-15 दिन पहले ही आए थे आप मेरठ में। फिर यू न्यू कि मेरा लाइफस्टाइल, मेरा खेलने का इतना ट्रैवल था। देन उसके बीच में जब ग्रासिया हुई, then how did you start your own journey around Mate, around Grasirena Foundation? I know उस टाइम पे you hired one doctor from Le Farm, उसके बाद एम्स के भी डॉक्टर थे, जो हमने ग्रासिरेना फाउंडेशन की जो एक वैन लगाई थी आपने पीछे वसंत विहार में, जहाँ पर you were डूइंग सो मच फॉर द मदर्स। और सारी मदर, आज भी हम बीच में एक बार हम गए थे गोलगप्पे खाने, वहाँ पे सारी मदर्स आई थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो दैट वाज हाउ डू यू रेट दैट? आई थिंक
कैसे वो माइंड में आया आपका? क्योंकि एक तो मदर बने आप, देन आपका फोकस था ग्रासिया पे, उसके बावजूद ऐसा कुछ करना, आई थिंक दैट वाज अनबिलीवेबल. I think that was a natural inclination क्योंकि when I moved back to India, Gracia was just 5 weeks old, I remember. और उस टाइम पे I was going through a completely different phase. वो इतना कुछ changes what I was going through और उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ें for me were very unknown. I didn't know how to deal with my mental health, my physical health, क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए. So that is when the thought came कि अगर मुझे इतना struggle हो रहा है, who has access to everything, doctors, information, medical system, उन mothers को कितना struggle होता होगा जिनको कोई भी access नहीं है. So that is how I started working on the foundation कि I want to raise more awareness around maternal health. फिर धीरे धीरे programs बढ़ते गए. We started doing more workshops and programs around women's reproductive health, adolescent health. So we did workshops in school. We educated children around their health and well-being, mental health, and a lot around gender sensitization. So वो सब naturally आया. वो सबसे प्राउड लगा कि योर मदर रियली सपोर्टेड यू दैट. मुझे याद है कि मम्मी से आपने बात किया वो, तो मम्मी ने बोला कि नहीं हर गांव में होना चाहिए. तो हैट्स ऑफ टू योर मदर ऑल्सो, क्योंकि वो हर इंटीग्रल पार्ट रही है माते का भी. और स्पेशली जो सैनिटाइजेशन की आपने बात करी, उन मदर्स की बात करी जो अप्रोचेबल नहीं होते डॉक्टर, की कभी कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता वो. आई थिंक फिर जब आपने मम्मा को बताया तो शी वॉज सो हैप्पी, योर फादर वॉज सो प्राउड, यू शुड डू समथिंग लाइक दैट. बिकॉज ये जो आप बात पहले कर रहे थे मदर और पेरेंटिंग में ना, वो बच्चों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. आज आपने किया, यो फादर मदर दोनों ने सपोर्ट किया. ऐसे ही अगर आप बच्चे हर बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसलिए माते वाली जर्नी बड़ी टफ थी उस टाइम पे, वो कि 2018 में यू स्टार्टेड राइट? फाउंडेशन आई स्टार्टेड 2017. माते आई लॉन्च्ड इन 2019. बट आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि पेरेंट्स का रिलेशनशिप और रोल कितना इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन का फ्यूचर शेप अप करने में. एंड इफ आई स्पीक फॉर माई पेरेंट्स, मेरे दोनों पेरेंट्स की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है. माई मदर इज वेरी फियरलेस. वो चाइल्डहुड से शी इज बीन, आई हैव सीन हर लाइक दैट ओनली. शी इनकरेज मी लाइक दैट ओनली कि जो अचीव करना है वो करना है. कड़ी चावल. एंड शी इज नेवर बीन this woman in the house ki bas cook kar liya, clean kar liya and didn't have any opinion. No, she was always full of opinions. She was always full of directions ki what she wants for her children, and that has really helped us navigate our journey. Have you ever spoken to Nani about it? Because I'm sure कि you were very close to her. I was very close to Nani. And she also came to a house. जब नानी ने ये सुना तो नानी को कितना प्राउड था. नानी ने क्या बोला था आपको? Ma, I used to call my Nani Ma. She always told me कि you as a woman will, कितना भी बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, कितना भी सपोर्टिव फैमिली है, हस्बैंड है, you as a woman have to be very strong. True. Because life may go through very different phases. And you have to be very, very strong as a person in yourself. And she also said कि हमेशा अपने आप को emotionally, financially बहुत independent रखना. Because that will make you as a solid anchor for your family. So those learnings I got from her, and she was also like that. और मुझे लगता है कि आपकी जो प्रिंसिपल थी ना मुरादनगर में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नहीं जवाहरलाल नेहरू स्मारक कि मेरा स्कूल था ऑनेस्ट फैक्ट्री मुरादनगर, आपका जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज. तो वो टीचर जो आपके प्रिंसिपल थी, जब भी बात होती थी आई थिंक शी ऑलवेज फेल्ट प्राउड कि गुड्डन तो हमेशा, बाय द वे इनका नाम गुड्डन है, निकनेम जो है. तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जो हम लोग ऐसे रूट से हैं जहाँ पर लोग उस चीज़ को बड़ा प्राउड फील करते हैं. जैसे आपने माते की बात करी, ग्रासरेना फाउंडेशन की बात करी, जब भी हम लोग उधर जाते हैं तो हम दोनों एक स्टेट से आके यू आर डूइंग इन ए सोसाइटी के लिए जो चीज़ आप कर रहे हो, मैंने खेल से जो चीज़ हासिल करी, लेकिन उन लोगों की ब्लेसिंग हमेशा रही है. तो मुझे लगता है कि किसी भी काम से पहले ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, जो हमें मिला है वो. स्पेशली जो माते के लिए ग्रासरेना फाउंडेशन, अब तो ग्रासिया को भी पता है वो. तो वो सारा मुझे याद है, जब मेरे पास वो वीडियो भी है, जब हम पुराने वाले घर में थे तो शी वॉज पैकिंग ऑल द बॉक्स फॉर देम, डॉक्टर वाला अलग, बच्चों के लिए टॉयज़ अलग. तो आई थिंक दैट्स सो गुड टू सी दैट कि किड्स भी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व थे, जहाँ पर वो छोटा छोटा उनका इनपुट्स हो, पैकेजिंग हो या फिर एक इन्वॉल्वमेंट हो.
तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, और आपने अच्छे तरीके से किया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. I think kids have been the biggest motivation, no? माते भी जब launch किया था, so my motherhood journey was the key motivation, right? इसी वजह से मैंने brand launch किया. Because if you look at it, हमारी skin most delicate और vulnerable होती है as a baby. और उस टाइम पे इट रियली पेन्स मी टू सी कि पेरेंट्स कितने नेग्लिजेंट होते हैं कि वो अपने बच्चों के स्किन पे क्या लगा रहे हैं, बिकॉज एनीथिंग यू पुट ऑन योर स्किन गेट्स एब्जॉर्ब्ड. और बेबीज के केस में बिकॉज स्किन इज इवन मोर थिन. तो आयुर्वेदा वाला आइडिया कहाँ से आया आपको ये, और व्हाई डिड यू चूज द फैक्ट्री इन केरला? सो आइडिया वैसे ही आया कि आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं बच्चों के लिए, बिकॉज दैट कैन बी वेरी हार्मफुल इन अ लॉन्गर रन, राइट? देयर आर सो मेनी हिडन केमिकल्स इन बेबी प्रोडक्ट्स इन टुडेज मार्केट जो हम लोग शायद रीड नहीं कर पाते हैं, बट वी पिक देम अप क्योंकि किसी ने रेकमेंड कर दिया. बट एज अ पेरेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम बच्चों के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना नेचुरल है, और नेचुरल में भी उन इंग्रेडिएंट्स का प्रोसेस क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सब बहुत एसेंशियल है. सो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि अगर ये प्रोडक्ट्स मुझे बनवाने हैं, दीज आयुर्वेदा इंस्पायर्ड प्रोडक्ट, नेचुरल वीगन प्रोडक्ट, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट फैसिलिटी टू गेट देम मेड. एंड I chose Madurai क्योंकि I really loved the setup of the factory. वो लोग का key focus होता है best quality ingredients because that makes the product Kerala what it known is. to be Ayurveda place. Some products are from Kerala. And so I loved what a clean facility it is. They're so mindful of the herb extraction, the process, zero chemical intervention. And this is like the purest form of product which we can use for children. So that's the reason. I also heard you're also coming up with a mother brand also. अब माते में तो मदर्स के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है ना. माते हैज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर माते. सो मदर्स जब बच्चे के लिए चूज करेगी तो एज यू राइटली सेड कि मदर्स प्रोडक्ट में क्या क्या आप लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि मुझे याद है जब आप ग्रासे होने वाली थी, बहुत सारी ऐसी हेल्थ चेंज होती है, बॉडी बहुत अलग शेप में जाती है, और उनको आप प्रोडक्ट्स के अलावा क्या उनको आप मेंटल हेल्थ के बारे में भी कुछ आप उनको एजुकेट करोगे? कैन बी योगा, क्योंकि बहुत सारी मदर कंप्लेंट्स करती हैं आफ्टर दे पुट ऑन सो मच वेट, फिर दे डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे गो टू केटो डाइट, दे गो टू वीगन डाइट, क्योंकि हम लोग को कभी पता नहीं था वो. क्योंकि मुझे लगता है कि फिर प्रेगनेंसी के 8 और 9 मंथ में आपने बड़ा ट्रेनिंग भी किया है, स्विमिंग भी प्लान करते थे, तो वो उसमें कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है मदर प्रोडक्ट? Okay, first talking about the products, key focus is the postpartum concerns, and so prenatal and postnatal. So we are working on prenatal products during pregnancy, which is the stretch marks butter, pain massage oil, stress relief oil, these kind of products which you can use during pregnancy. And then postnatal, so biggest concern moms have delivery ke baad is the hair fall. So we are working on a range of a hair fall solution. So we're working on hair fall shampoo, conditioner, oil, and a hair growth serum, which has, by the way, come out to be very effective, and other products like pigmentation solutions. So it has to be a wholesome system around pregnancy, prenatal, postnatal. Talking about the well-being part of it, that is the reason we started Matehood, because Mate as a brand is supplementing this journey through products. But as you rightly said, उस journey में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती है फिजिकली और मेंटली और इमोशनली, और उसको ईज करने के लिए वी डिसाइडेड टू लॉन्च मातेहुड, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वी आर एजुकेटिंग मदर्स अबाउट देयर डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, योगा, so we invite experts from different segments who can educate these moms. So I hope through Matehood we'll be able to create that kind of awareness जहाँ पे moms उसको follow करके and they will be able. Have you ever thought कि Matehood में जितने भी guests आए, it's around the mothers only. Have you ever thought writing a book on mother? Hopefully eventually. You should do it because I would love the knowledge to do you that. have having 2 kids, उसमें जो you have that experience and having that brand, क्योंकि उसमें जो आपका पूरा सफ़र, अगर आप वो 100 पेज की बुक आएगी तो आई थिंक ये मदर विज लव इट. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब अपनी किताब लिखी थी, सब बच्चे लोग कि मुझे वैसे बनना है, आपने कैसे वो रैगिंग वाला वो चैप्टर कैसे उसको ओवरकम किया, अपने फेयर्स को कैसे, और फेलियर से ज़्यादा सीखे. वो लगता है कि राइटिंग समथिंग वो दिमाग में रहता है, वो आई थिंक
मुझे लगता है इस शो के माध्यम से जो मुझे आज इतना कुछ सीखने को मिला अराउंड प्रेगनेंसी, अराउंड फीडिंग के बाद यू आर अप 2 घंटे के बाद यू आर नॉट एबल टू स्लीप, फिर बच्चों का जो एक एक कनेक्शन होता है मदर के साथ, फादर का एक सपोर्टिव जो होता है कि वेल बीइंग बच्चे दोनों का वो, तो आई थिंक यू शुड रियली राइट द बुक। बड़ा मेरे लिए बड़ा न्यू था ये इंटरव्यू, क्योंकि मैं 20-22 साल से जो खेल रहा हूँ, वी टॉक अबाउट क्रिकेट, mental health, anxiety, depression, how to perform under pressure, but this is very new to me because I never thought कि ऐसा इतना कुछ चैलेंजिंग होगा। जो आपने पीवीटी की बात करी, अल्ट्रेशन की बात करी, ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी में। अगर हम इसको, जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर ये लोग करेंगे तो कितना बेटर होगा हमारा भारत, कितना बेटर होगा सोसाइटी। और ऐसे हर मदर्स को बात करनी चाहिए। आई थिंक यू हैव डन ए रिमार्केबली वेल अराउंड योर मातेहुड। थैंक यू। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। So what is your favorite product in Mate? So many, but I personally enjoy using is the Mate body butter because तो मेरा भी फेवरेट है वो। it's just amazing. It's very I like the buttery. shampoo, Yeah. conditioner जो हम यूज करें, एक्चुअली मैंने भी बहुत यूज किया है। Turned out to be really, really. And we have sent so many gifts to everyone. Everyone loved it. मुझे एक लड़की मिली थी एयरपोर्ट में, आई वाज कमिंग फ्रॉम सूरत, तो भागते भागते मुझे लगा मेरी कोई फैन होगी और क्या, तो शी सेड प्लीज सर कैन आई टेल यू समथिंग। मैंने कहा हाँ, पिक्चर मुझे लगा ऐसे ऑटोग्राफ, प्लीज टेल योर वाइफ प्रियंका रैना चौधरी, शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क इन मातेहुड एंड आई सो इंस्पायर्ड बाय हर, हर जर्नी इज सो नाइस, सो आई फेल्ट सो प्राउड। मुझे लगा क्या बात है। तो अभी बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक किड्स रियली एंजॉय। बॉडी बटर है, शैम्पू है, कंडीशनर है, बीच में आपने कॉम भी निकाला था। आई रियली लव द किट जो हमने पूरा लीला होटल्स में किया था वो, एंड आई लव द ट्रैवलिंग किट जो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे। हम लोग जो होटल में गए वहाँ पे जब देखा तो इट लुक्ड वेरी प्रोफेशनल, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बट मोस्ट सेलेबल कौन सा प्रोडक्ट है आपको लगता है कि लोग सबसे ज़्यादा किस पे, कि बीच में मुझे याद है शॉर्टेज भी आई थी कुछ, तो कौन सा है वो लगता है? Our top seller is the face butter. So the baby face butter. Why it is so popular? I think we are the first brand to come up with a face butter and not a cream. Reason being, butter is more natural than So the cream. kokum butter you use, right? So we have kokum butter, we have saffron oil, we have avocado, and so many natural ingredients in it. And parents just love it because it provides a deep hydration and lasting hydration. So you don't have to repeat the applications again and again. And secondly, it's just so natural. So they know that there's no harmful chemicals which they're infusing, and Nice. the trust is there. Mate. Now, moving on to the fun segment. How well do you know Priyanka? Priyanka means full of life, full of travel, and I make sure I always surprise you. It can be bag, it can be travel, it can be shopping in any way you like. But most importantly, I think you being very, very honest with your work. And whatever you do it with the passion. जो एक जोश है, but proper एक दिल से पूरे जज्बे के साथ. And you're very, very strong woman I ever met in my life. With your work, with your passion, and you're very, very strong character. And एक अलग तरीका होता है लाइफ जीने का, लेकिन you always think about your own persona, and you have a lot of patience. And I must say, I think I'm very, very. What is my favorite color? Blue. बहुत सारे कलर पहनती हो, ब्लू है, वाइट पहनती हो, येलो पहनती हो. आई थिंक ब्लैक ज्यादा पसंद है. Gracia knows this. I wish she was here to support you. Okay, what is my orange? Oranya. Oh, orange. Orange. But anyways. अभी लास्ट में कब पहना था orange? I don't have to wear the color I like. I just like looking at it. Oh, anyhow. What is my favorite food? You like avocado. Okay. You love कढ़ी चावल. You like rajma चावल, छोले चावल. And I think you've been eating very, very healthy food. Food तो मैं ही बनाता हूँ, खाना मुझे तो मालूम ही है. One quality of me that has really inspired you as a person? I think woman empowerment. Every woman should make her own way of living. She should be free. She should pursue her career. Whatever she like, I think every man should support her partner.
as you said earlier, you have that regret you want to do the master degree. I think you should really do it. I think वो एजुकेशन तो वैसे जितना पढ़ोगे उतना you will get the knowledge. और जितने हमारे वर्ल्ड में भी डॉक्टर्स हैं 10 गुना वो अलग रिसर्च कर रहे हो. आई थिंक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एंड यू शुड रियली डू इट. What makes me really happy? Watching a Netflix series. Traveling, I think you like to do nice fine dining restaurant. सोना पसंद है आपको काफ़ी? No. सोने के बाद I think we do gym together. I think after workout you get really really happy. I think बहुत सारी चीज़ें हैं वो. मतलब happy means I think it can be spending time with the kids. It can travel. We travel a lot in Europe. I would say spending time with us, with me and kids. I think that's the most prioritizes thing you enjoy the most. One thing about me that really annoys you. बोल दूँ? You're thinking like so पता नहीं है many. कि मैं उतना annoy तो कुछ नहीं है. Really? So it's time for the fun segment, and this involves both of you. This is called the Raina's Super Over Showdown. Ooh. So here is how it goes. I will be asking the question. Both of you shut your eyes, and let's see who points to who for the questions that I'll ask. So no cheating, no looking at each other. And let's see how it goes. Sach bolna hai, theek hai? So let's start. Who's more likely to spoil the kids with extra treats? Always. Who's better at putting the kids to sleep? Always. Who's more likely to forget a school event or a meeting? I always remember. मैच Not होगा, available. मैचेस होगा, फिर जब भी होता है मैं आपको मेल बताता हूँ अभी ये हो गया वो हो गया वो. For शी डज इट वेरी फ्रिक्वेंटली बट मैं मेल नहीं पढ़ता वो. मेरे मेल बॉक्स भरा रहता है वो. You know. I keep reminding. Who has better bedtime stories, action-packed cricket tales or fairy tales? But my story is always around the game. I watch movies with kids. चाहे रियो का वो कार का मूवी हो, चाहे हमारी वो स्त्री मूवी हो, भूत हो. Who's the stricter parent? Both actually. Hello, दोनों ही एक्चुअली. वो दोनों का अलग है. आई थिंक शी इज मोर इनटू कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं. मेरा रहता है थोड़ा जस्ट इतना स्ट्रेस मत दो. जब ज्यादा डर बैठाना होता है तो हम इनको लेके आते हैं. डर नहीं बोलूंगा. आई थिंक Yeah, in the sense like when और हमें like भी once बच्चों in a से डर while. लगता है. बाय द वे वो बच्चे I भी know. एकदम. So different now. Who takes longer to get ready for a family outing? हे भगवान. I am always ready in time. खाना सर की कसम. खा विद्या कसम. कितनी झूठी हो गए. And waiting for you to get ready. And you're always watching those reels. Okay. ये ही लेट होती है हमेशा. आजकल मेकअप तो आप भी कर रहे हो ना. मेरे इधर उधर होता है हल्का सा. मेरी त्वचा को मत छेड़ो अभी. Who's more likely to let the kids skip homework for playtime? Our kids don't have homework, so thankfully. होमवर्क नहीं. आई थिंक स्पोर्ट्स का हो गया. आई थिंक इन ए वे ग्रासिया इज मोर ऑर्गेनाइज. Of course. शी लव हर होमवर्क. रियो का भी उतना स्कूल में मोर ऑफ ए प्ले डेट, मोर ऑफ ए सॉकर गेम और वॉलीबॉल जिम्नास्टिक. तो एज प्रियंका सेड इतना होमवर्क नहीं है. Who plans better family vacations? Somebody is really gearing up now. Hmm. You planned the Bali trip end to end. And I think even recently to Kerala. केरला It used to be always me, but आई थिंक picked up. शी प्रेफर जब ये बाहर जाती है तो शी डज इट. मैंने हिंदुस्तान बहुत देखा हुआ है खेल की नज़र से. चाहे वो साउथ में मैं 15-16 साल खेला हूँ तो मुझे नुक्कड़ और गली चौराया पता है वहाँ का. वो केरला पहली बार मैं 2005-06 में त्रिवेंद्रम में. शी रियली एंजॉयड. और शी इज़ ऑल्सो प्रेफर कि कहीं एक ऐसी जगह हो. राजस्थान हमने इस बार काफ़ी गए Yeah. हो, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर.
और मेरे मैचेस के कारण ना फिर लोकल जो सपोर्ट मिलता है, जो यूनिकनेस है, वो बड़ा मज़ा आता है वो। क्योंकि पहले यूरोप में क्रिकेट होता नहीं था, हम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वहाँ जाते थे, लेकिन यूरोप में आई थिंक शी नोज़ मोर देन मी, बट हमारा कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है वो। तो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मुझे हमेशा लगता है हमारा श्रीनगर में जो सोने की चिड़िया है वो, तो मैं लेके गया था बर्थडे में वो। तो शी ऑल्सो एग्रीड कि नहीं, ये थोड़ा अलग लेवल है श्रीनगर हमारा Thanks कश्मीर। to him, I have explored so much of India now. And I'm very, very happy that I did. She really love Rajasthan. वहाँ का Rajasthan ट्रेडिशनली always, वी yeah. रियली एंजॉय द फोक डांस, वहाँ का पहनावा, उनका खाना, Yeah. गट्टे की सब्जी, फिर अपना वो लहसुन की चटनी, बाजरे का रोटला। बट हर जगह खेलते हैं तो खाना वो तो ताकत है वो। और लोग ना बड़े वो नाइसली वो पुट ऑन करते हैं वो सारा। वो गुजरात जाओगे तो अलग खाना है, महाराष्ट्र जाओगे तो अलग खाना है वो। Who's more likely to turn every situation into a life lesson for the kids? Oof. This is a tough one. Both of us, I guess. एक्चुअली बच्चे ही करते हैं वो, कि रियो को कभी सॉकर खेलना है, मम्मा ग्रासिया नहीं जा रही है, ग्रासिया वांट्स टू प्ले समथिंग एल्स। He's full of complaints about his sister. बट बेटर हुए हैं पहले से दोनों। Who's better at managing last minute kid-related chaos? मी ओनली। Yeah. तो मैं ही हूँ ना। हाँ, क्या कौन सा ट्रिप सोच रही तुम? सोच रही हूँ कौन सा chaos recently हुआ था। आज सुबह ही हुआ है। Dressing up like 70s for school. बच्चों का, हाँ, एक्चुअली स्कूल में वो यूनिफॉर्म नहीं है वो। थैंक यू सो मच प्रियंका, लवली Thank टू you. टॉक टू यू इन मातेहुड। कैसा लगा so आपको? much for being on the sets of Mate. कैसा लगा आज आपने? Privilege for you. एक्चुअली कैसा लगा आज एक क्रिकेटर के साथ आपने इंटरव्यू किया वो? I was not talking to a cricketer. I didn't ask you even a single question about cricket today. You see? That's why the interview was different. You're right. बट क्रिकेट आएगा ना? Because हाँ। वो तो होगा ही. वो तो होगा ही. Because today I wanted to talk to a father, a husband, a son. सो फादर पास हो गया आज? नहीं। Always. और सन? It's going to be 10 years we're together. ओह, Son के लिए तो मम्मा को बुलाना पड़ेगा. मम्मी मर जाने, मारना चपेट तेरे मुंह पे। Thank you so much. No, but we had so many moms on our show, and we always spoke about the journey of motherhood and, you know, women's well-being, health, and everything. But I was really excited to have this episode and have this chat with you because हम वो fathers के perspective के बारे में भी बात करना चाहते हैं. We want to know what the fathers go through. So thank you so much for being so open with me, and thank you for finally giving me the date. Thank you. And thank you for not charging me for being here. And thank you for being the most supportive partner and Thank you supportive so much. husband.